4 سال اور یہ ہمارے گول پاٹ 6 سال. تھے شروع سے تھے یا 9 تھے. ساتھی وہاں بھی گئے. اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت والی محنت کی نسبت پر ہمیں اور آپ کو استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین حق کو تمام دینوں پر غالب کرنے کا فیصلہ کر لیا. اور پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ میرا لایا ہوا دین دنیا کے ہر طبقے کے مکان میں داخل ہو کر رہے گا. تو خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے دین کو عالم میں پھیلانے کے لیے قبول فرمائے. ہم اس کو اپنی بہت بڑی سعادت مندی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے جذبات، ہماری صلاحیتیں اللہ نے اس عظیم محنت کے لیے استعمال فرمائی. جو محنت آپ حضرات ماشاءاللہ کر کے آئے ہیں، جو قربانیاں آپ حضرات نے دی ہیں، گلی در گلی، گھر گھر، ایک ایک فرد کی ملاقات کے لیے، جو کچھ تھکے، جو مجاہدہ برداشت کیا، اور انشاءاللہ اللہ کے وہاں محفوظ رہے گا. مجاہدے پر جو تکلیف اور صعوبتیں برداشت کی وہ تھوڑے دن کی تھی، ختم ہو گئی، لیکن اس کا اجر انشاءاللہ باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی خیر کو متعدی کریں گے. پتہ نہیں کب تک یہ خیر دنیا میں چلتی رہے، اور جب تک یہ خیر جاری رہے گی اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. یہ ہمارا اس وقت میں یہاں جڑنا ایک کارگزاری کے عمل کے لیے. ہماری اصل کارگزاری تو ہم سب کی اللہ کے وہاں ہے. زندگی میں جا کر جو گئے ہیں یہ ساری کارگزاری وہاں ہوگی. جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ انسان اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سوالات ہو رہے ہیں 5 سوال اس کا جواب نہ دے. پہلا سوال یہ ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، میں نے اپنی زندگی دی تھی اس کو تم نے کہاں خرچ کی. اس لیے ہماری زندگی کا ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے. اگر ہم نے ہماری جان اور مال کو اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے استعمال فرما دیا تو گویا ہم نے ہماری جان اور مال کو ٹھکانے لگا دیا. اور اگر اللہ نہ کرے جان کی طاقت مال کے بڑھانے کے لیے اور مال کا استعمال جان کی حفاظت کے لیے، گویا جان مال کے لیے اور مال جان کے لیے لگتی رہی تو اللہ کے وہاں حساب دینا بھاری پڑ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حساب یسیر آسان حساب نصیب فرمائے.
ماشاءاللہ آپ حضرات محنتیں کر کے آئے ہیں، قربانیاں دے کر آئے. کارگزاری کا تو ایک عمل پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتا تھا. ہمارے اس عمل کے اندر میں بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے لے کر یہ عمل کیا جا رہا ہے. اور دو عمل ایسے ہیں اس محنت میں کہ جن عملوں کی وجہ سے اس کام کے نہج کی حفاظت ہوتی ہے. نہج صحیح ہوتا ہے تو کام اپنے منافع کو ظاہر کرتا ہے. 3 باتیں بتائی جاتی ہیں ہمارے بڑوں سے، ہم نے سنا. ایک تو فکروں میں اتحاد ہو، دلوں میں جوڑ ہو، اجتماعیت ہو، اور نہج ہمارا صحیح ہو. جیسے بزرگوں سے سنا کہ اگر یہ باتیں ہوگی تو صدیوں کی خیر اللہ تعالی مہینوں میں لے آئے گی، اور مہینوں کی خیر ہفتوں میں آ جائے گی. اور اگر نہج صحیح نہ ہوا تو پھر اس کے عکس، اس کا الٹا ہوگا. اسی لیے یہ کام کار نبوت ہے. بقول حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. دنیا کا ہر کام اس کے اپنے مزاج سے ہوا کرتا ہے. کاشتکار کھیڑوت جو ہوتا ہے وہ کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، تو اس کا مزاج کھیتی والا ہوتا ہے کہ اچھے سا اچھا بیج بچا بچا کر اس کو زمین میں ڈالتا ہے. تاجر کا ایک مزاج ہوتا ہے، کاشتکار کا ایک مزاج ہوتا ہے. ایسے ہی کار نبوت کے لیے ایک مزاج ہے. اور نبوت کا مزاج یہ ہے کہ جیسے کہا جائے ویسا کیا جائے، اور جتنا کہا جائے اتنا کیا جائے. اس سے ہماری اور ہمارے کام کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ حکم دیا گیا فاستقم کما امرت، کہ آپ اس پر اپنے آپ کو جمائیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ہدایت 2 باتیں جاتے ہوئے جماعت کو ہدایات کی بات کی جاتی ہے. ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، پوری ہدایت کی بات ہوتی ہے. اور واپسی کے اندر میں پھر جماعت کی کارگزاری ہوتی ہے کہ کیسے کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو جماعتیں اللہ کے راستے میں جاتی تھی تو ان کو ہدایت دی جاتی تھی، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا. ان میں ایک بات بتائی جاتی تھی واتق دعوۃ المظلوم، مظلوم کی دعا سے اپنے آپ کو بچانا. ہدایت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت روانہ فرمائی، اس میں بڑی ہدایت کی باتیں، بڑی قیمتی باتیں بیان فرمائی. حکایت صحابہ میں قصے میں جس کو نقل کیا گیا ہے، اے سعد تم کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں کہلاتے. ہدایت کی بات میں یہ فرمایا تھا اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبی کا عادی بنانا. اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں دھوتے، اللہ تعالیٰ برائی کو بھلائی سے دھوتے. جاتی ہوئی جماعتوں کو ہدایت دی جاتی تھی، اور جب جماعتیں واپس آتی تھی تو واپسی پر ان سے کارگزاری لی جاتی تھی. کیا ہوا؟ ہدایت کی کارگزاری کے اندر میں جو باتیں ٹھیک ہیں، اور جو باتیں اصلاح کے قابل ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اصلاح فرماتے. ایک جماعت آئی، جماعت کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نکلے ہوئے تھے تو ہمارے امیر صاحب نے آگ جلائی، اور آگ جلا کر یہ حکم دیا کہ سارے ساتھی اس میں کود پڑے.
हमने अर्ज किया अमीर साहब, हम तो आग से बचने ही के लिए तो इस्लाम लाए हैं, फिर आग में कूदने का क्या मतलब? आग में नहीं कूदे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम था कि अगर कूद जाते तो आग ही में रहे। आप अलैहिस्सलाम के जमाने में भी कारगुजारी का यह अमल होता था, इसलिए ये अमल किया जा रहा है। अल्लाह करे कि इन हिदायत की बात पर अमल करने के नतीजे में और सही कारगुजारी हमारे सामने आने के नतीजे में हमारे अंदर में भी अमल पर अच्छी तरह सही रहज के साथ हम खड़े होने वाले बने। करते रहें, जितना आगे बढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला करने के नतीजे में हमें आगे बढ़ाएगा। जैसे क्या कहा जा रहा है वैसे ही करने में हमारे लिए अमीर और हमारे लिए खैर। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अंदर के मौके पर इनकी तश्कील करके इनको रवाना करवाया। आवाज की ज्यादा जरूरत नहीं, बकुल हो रहा है तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वहां देख कर आइयो, कुछ करके ना आइयो। और आप जानते हैं वाकया, वहां जाकर देखा तो आग पर सब सेक रहे थे, इनमें अबू सुफियान भी थे, उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे। तो हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सोचा मौका अच्छा है, तरकश में से तीर निकाल कर कमान में भी रख लिया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई। अपना अकली घोड़ा नहीं दौड़ाया, अकल से नहीं नकल से काम चलेगा। हाँ, कुरान और हदीस में जो बातें हमें बताई गई, हिदायत की रोशनी में हमें जो बातें बताई जाती, इन बातों पर अमल करने में हमारे लिए खैर। फौरन अपने कमान में से तीर निकालकर तरकश में रख दिया। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे कहा था वैसे किया। अल्लाह करे कि हम भी इसी तरीके से जिंदगी भर अल्लाह के दीन की मेहनत को वैसे करें जैसे कहा जा रहा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो खैर सदियों में लाने वाले हैं, अल्लाह ताला वो खैर महीनों में मुंतकिल फरमाकर अल्लाह ताला हमें उस खैर में से वाफिर हिस्सा अता फरमाएंगे और इंशाअल्लाह करते करते मरना और मरते मरते करना अल्लाह नसीब फरमाएगा। इसलिए अभी इस वक्त में हमारी जो जमातें जोन में काम करके आई है, बड़े मुजाहदे के साथ गुजरती है। बाज़ औक़ात कारगुजारी में जो कुछ कहना है वो किसी वजह से कह नहीं पाते, अगर से माशाअल्लाह बहुत कुछ सह करके आए हैं, बहुत कुछ करके आए हैं, तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह तबारक व तआला इसका जो अजर देगा, अजर तो इंशाअल्लाह बाकी रहने वाला है। इसलिए अल्लाह वाले का फरमान है कि तकलीफ के डर से नेकी को मत छोड़, तकलीफ जाती रहेगी और नेकी बाकी रहेगी। और लज्जत के शौक में गुनाह न कर, लज्जत जाती रहेगी और गुनाह बाकी रहेगी। इंशाअल्लाह आप हजरात बहुत कुछ करके आए हैं, इसलिए अभी इस वक्त में हमें चंद बातें कारगुजारी के तौर पर खास तौर पर याद रखनी है। तो ये कि हमारी जमात फला जगह की थी और हमारी जमात में इतने साथी थे, 8 साथी, 10 साथी, 12 साथी जो भी थे, इसमें 4 महीने लगाए हुए इतने साथी थे और हमें काम के लिए इतनी बस्तियां दी गई थी। इन बस्तियों में से इतनी जगह पर, इतने मकामात पर मस्जिदें थी और इतने मकामात पर मस्जिदें तो नहीं थी, इबादत गाहें थी, या फिर मस्जिद भी नहीं थी, इबादत गाह भी नहीं थी, और हमने वहां पर टेंट लगाकर, तंबू लगाकर हमने वहां क़याम किया। और फिर जो कुछ काम काज हुआ हो, इस हमारे निकलने के दौरान में कितनी मुलाकातें हुई, कितने ऐसे मुसलमानों से मुलाकात हुई जो जिनको कलमा नहीं आता था, कलमे से नावाकिफ थे, हमने उनको कलमा सिखाया और नमाज सिखाई। हमारे साथ कितने साथी हमारे साथ 24 घंटे या 48 घंटे या 2-3 दिन हमारे साथ लगाए,
ہمارے اعمال میں شریک ہوئے، تعلیم کے اندر میں شریک ہوئے، اور جو کچھ اسلام کی کارگزاری ہو اس کو انشاءاللہ بیان کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھی پہنچ چکے ہیں، ایک جماعت آ جاؤ، کہاں کی جماعت آئے گی؟ پہلی جماعت آ جاؤ۔ السلام علیکم۔ ہماری کٹھورل کی جماعت تھی، 12 ساتھی تھے، 5 ساتھی 4 مہینے لگائے ہوئے تھے۔ ہمیں کوسمبا اور حسود کا اعتراف دیا گیا تھا۔ 11 بستیاں دی گئی تھی، اس میں سے ساری بستیاں مسجد والی تھی۔ 11 بستیوں میں 9 بستیوں میں ہمارا قیام ہوا۔ یہ 11 بستیاں جو مسجد والی دی گئی تھی، ان مسجدوں میں پہلے سے جماعت آتی جاتی رہتی ہے؟ کچھ بستیاں ایسی تھی، 3 بستیاں ایسی اس میں جماعت آتی جاتی نہیں، باقی بستیوں میں جماعت آتی جاتی۔ اس میں ہمارے یعنی شروعات کوسمبا کے حلقے سے ہوئی، کوسمبا اطراف سے، جہاں خرج گاؤں ہے اس کے اطراف میں فیکٹریاں ہیں، گلاس کی فیکٹریاں، اور پورے ہندوستان کے لیبر ورک مزدور طبقہ وہاں کام کرتا ہے۔ اس میں ہم نے وہاں خرج گاؤں سے شروعات کی۔ اس کے اطراف میں بہت ساری کمپنیاں ہیں، ان کمپنیوں میں بہت سارے مسلمانوں کی تعداد ہے۔ ان مسلمانوں میں ان کمپنیوں میں جیسے پرگتی گلاس فیکٹری ہے، برلا فیکٹری ہے، پی جی پی ہے، ایسی بہت ساری فیکٹریاں ہیں۔ اس میں محنتوں کے لیے جانا ہوا، تو پرگتی گلاس فیکٹری میں ہمارا جانا ہوا۔ وہاں قریباً 200 مسلمان وہاں کام کرتے ہیں، جو پورے ہندوستان کے الگ الگ علاقوں سے بسے ہوئے ہیں۔ ان میں ہمارا جانا ہوا، ہمارا ان کے اندر یعنی ہمیں جانے کے اندر ان سے رابطہ قائم کرنے میں ہمیں 8 دن لگے۔ بہت یعنی مسلمان تو ہیں لیکن بالکل سارے غیر مانوس لوگ ہیں، ملاقات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ان کے سپروائزر اور ان کے جو نظام چلانے والے لوگ ہیں وہ بھی جلدی ملاقات نہیں کرتے۔ تو 8 دن لگے ہم کو ان سے رابطہ کرنے کے لیے۔ ان کے پاس گئے لیکن انہوں نے یعنی کوئی ایسے پہلے شروعات میں تو یہ نہیں کیا۔ 3-4 مرتبہ ہمارے ساتھی گئے، پھر ساتھیوں نے آ کر مشورہ کیا کہ اندر جانے کی کوئی شکل نہیں بنتی، ہم کیا کریں؟ تو ساتھیوں نے مشورہ کیا تو یہ بات ہوئی کہ وہاں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات عمل کرے۔ تو پھر ہم مغرب کی نماز کا ارادہ کر کے وہاں گئے، 3-4 ساتھی، اور نماز کی تیاری کے ساتھ گئے تھے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر کے وہاں نماز پڑھیں گے۔ تو وہاں جا کر ان کو درخواست کی کہ بھائی یہاں سے ہم یعنی جا رہے ہیں، نماز کا وقت بالکل ہو چکا ہے، ہمیں ذرا نماز پڑھ لینے دے تو بہت اچھا ہے۔ تو ایک بھائی تھے، چھوٹا کمرہ تھا، وہ تیار ہو گئے۔ تو ہم نے 4 ساتھیوں نے وہاں مغرب کی نماز پڑھی۔ ان کو بھی کہا کہ اگر آپ نماز پڑھیں، لیکن انہوں نے نماز کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر ہم نے زبردستی نہیں کی، ہم نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ ساتھی سے سلام دعا کیا تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ یہ آج میرا کمرہ پاک ہو گیا، 20 سال میں پہلی مرتبہ یہاں نماز ہوئی، اور بہت خوش ہو گئے۔ پھر ہم نے ایسے ہی خیر خیریت پوچھی اور ایسے ہی بہت زیادہ بات نہیں کی، ہم چلے آئے۔ پھر دوسرے دن پھر سے گئے۔ کسی نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی وہاں؟ نہیں، وہاں نماز ہم نے بات رکھی تھی۔ اچھا، آپ کے ساتھیوں نے ہی نماز پڑھی؟ ہمارے ساتھیوں نے پڑھی۔ پہلی مرتبہ داخلہ ہوا تھا، انہوں نے زیادہ کچھ یہ نہیں کیا۔ پھر ہم دوسرے دن پھر سے گئے، پھر تھوڑی تحقیق کی تو پتا چلا کہ ان کے ایک رضوان بھائی کر کے سپروائزر ہیں، اور دوسرے ایک سونو بھائی کر کے ہیں۔ ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو سونو بھائی سے انہوں نے ملاقات کرائی۔ پھر ہم نے ان کو بات رکھی کہ بھائی ہم یہاں نکلے ہیں صرف مسلمانوں سے خیر خیریت کے لیے نکلے ہیں، اور ہم آپ کے مسلمان ساتھیوں کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے رضوان بھائی مین ہیں، وہ گاؤں گئے ہیں، کل پرسوں آ جائیں گے، اس کے بعد آپ سے ملاقات کرنا۔ تو پھر جب رضوان بھائی واپس آ گئے، پھر ہم نے ان سے ملاقات کی اور ان کو جو ہے بات چیت کی۔ تو انہوں نے ہم نے کوئی دعوت کی بات نہیں کی، صرف ہم نے ایک بات کہی کہ بھائی ہم مسلمانوں کی خیر خبر کے لیے نکلے ہیں اور ہم دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ جتنے مسلمان ہوں گے ان کی دعوت کریں گے، کیونکہ بھائی آپ آنا، ہم جتنے مسلمان اگر جڑ سکتے ہیں تو جڑیں گے، کیونکہ وہ سب الگ الگ پانی میں کام کرتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھی کچھ وہاں گئے ناشتہ وغیرہ لے کر، 15 ساتھی پہلی مرتبہ میں انہوں نے ایک کمرے میں جوڑے۔ ہم نے ایسی موٹی موٹی بات کی، خیر خیریت کی، پھر ان کو ناشتہ کیا، ایسے کر کے وہ قریب ہوئے۔ پھر ہم چلے آئے۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ مولانا یو پی کے رہنے والے، مرزا پور ضلع کے، اور
अक्सर मुसलमान ऐसे हैं, उनमें 200 मुसलमान के करीब वो खोलियों में रहते हैं। अक्सर मुसलमान ऐसे हैं मौलाना कलमा नमाज नहीं जानते। कंपनी के अहाते में उनका रहना होता है जी, कंपनी के गेट के साथ कंपनी वालों ने खोलियां दी होती है, उनमें रहना। कंपनी में जाने की इजाजत तो नहीं मिलती, लेकिन बाहर उनके कमरे हैं छोटे छोटे, उनमें जाने का यानी इजाजत है। आप जिस मस्जिद में ठहरे हुए थे वहाँ से ये कंपनी कितनी दूर थी? ये 1 किलोमीटर दूर थी। कोई शक्ल वहाँ नहीं बन सकती थी कि अगर आप वहाँ टेंट लगा लेते तो ज्यादा फायदा होता? आपका टेंट था? टेंट नहीं था। जाहिर की बात में आपके टेंट लेकर जाने की बात नहीं आई थी? मना किया नहीं? तो कोई जमा टेंट लेकर नहीं गई? अच्छा, आप लेकर गए? अच्छा अच्छा, बहुत यानी आपको एहसास तो हुआ होगा कि अगर टेंट लेकर के आए होते तो यहाँ करीब रहते तो ज्यादा फायदा होता, ताकि बार बार मुलाकात का निजाम बन सके। चलो खैर, माशाल्लाह। आइंदा हमें टेंट लेकर ही जाना है, हमारा अपना साथ हो तो जहाँ भी चाहे हम कयाम कर सकते हैं। खैर माशाल्लाह, फिर क्या हुआ? मान अक्सर वो है कि जो कलमा नमाज नहीं जानते। एक साथी कुछ करीब हुआ था, वो कहने लगा कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे जुमा के लिए भी नहीं जाते, बल्कि ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते। फिर हमने 2 दिन के बाद रिजवान भाई से फिर से मुलाकात की, जरा उनको करीब किया कि भाई हमको अभी तो 15 लोगों से मिले हैं, और शिफ्ट के लोगों को और टाइम में अगर आप मुलाकात करवा दे तो हम और लोगों की दावत करना चाहते हैं। तो वो थोड़े करीब हुए थे तो तैयार हुए, फिर हम उन्हें जो है अपनी मस्जिद में लाए। तो मौके पर 25 लोग हमारे साथ आए। जोहर की नमाज में आए, मस्जिद में आए, हमने उनके खाने की दावत की थी। तो जोहर की नमाज में वो लोग, हमने उनको जोड़ा कि जोहर की नमाज पढ़ेंगे, बाद में खाना खिलाएंगे, थोड़ी मोटी मोटी बातें करेंगे, कलमे के मुजाकरे करेंगे। मौलाना वो लोग आए तो 5-6 लोग ऐसे थे जो मस्जिद में ही नहीं आ रहे। तो हमने पूछा कि आप मस्जिद में क्यों नहीं आते? कि हम नहीं आ पाते। फिर मस्जिद के साथ ही एक छोटा सा कमरा था, वहां हमने उनको बिठाया, बाकी लोगों को नमाज पढ़ाई। 3-4 बच्चे, नौजवान बच्चे 18-19 साल के ऐसे थे मौलाना कि जिनको नमाज पढ़ना भी नहीं आती थी। वो अपने बाजू वाले को देखकर नमाज पढ़ता था कि बाजू वाला जो करता था ऐसी नमाज। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उनको खाना खिलाया। खाने के बाद थोड़े मुजाकरे हुए, कलमा पढ़ाया, नमाज की कुछ बातें की, तो बहुत खुश हुए। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो है प्राकृतिक ग्लास में काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये 25 साथी आपके पास आए थे मस्जिद में, वो कितनी देर तक ठहरे होंगे? 2 घंटे तक ठहरे थे और पहली मरतबा आए थे जी। और फिर आगे? फिर उसके बाद हमने यहाँ उसके करीब एक 5 फैक्ट्री है, कबीर वन करके बस्ती है, वहाँ प्रगति ग्लास में और आजू बाजू की कंपनियों में काम करने वाले मजदूर किस्म के लोग रहते हैं। वहाँ ये जो हजरात वहाँ रहते हैं वो सब बेशतर है, अकेले हैं या अपनी मजदूरात के साथ? नहीं, अकेले रहते हैं। अच्छा, सारे लोग अकेले रहते हैं। जी मौलाना, हमने उनको बात करी कि ऐसी कोई शक्ल बने। अभी जब हम गुज़िश्ता यहाँ 2 दिन पहले हमने वहाँ लगाए तो हमने उनसे दरखास्त रखी कि भाई हम यहाँ कोई ऐसी शक्ल बनाना चाहते हैं। तो पहले तो तैयार नहीं, फिर हमने उनको रमजान की दरखास्त रखी कि भाई रमजान में अगर हम एक हाफिज साहब भेजे आपका यहाँ कोई नमाज का तरावी का निजाम हो। तो वो तैयार हुए हैं कि आप इंशाल्लाह अगर तरतीब बनाए तो हम एक कमरा आपको साफ कर देंगे, उसमें आप नमाज भी पढ़ाना, तरावी भी पढ़ाना है। रिजवान भाई कहाँ के हैं? और रिजवान भाई भी वहीं के, यूपी के हैं। उनका कंपनी में वो कॉन्ट्रैक्ट चलता है, वो सुपरवाइजर। ये सारे लोग मौलाना गैर मानूस हैं। हमने बात रखी मौलाना, वहाँ के खरच की एक साथी है, नौजवान जिम्मेदार साथी है, जिनकी वहाँ करीब में दुकान है, उनको साथ में लेकर भी गए थे। हमने दरखास्त भी रखी कि हम यहाँ कुछ नजम करें कि एक नमाज शुरू हो जाए, 2 नमाज शुरू हो जाए, लेकिन उन्होंने अभी मना किया ना। हमने दरखास्त रखी कि नमाज जिंदा हो जाए। इनसे तसलसल से राब्ता रखा जाए, रिजवान भाई इनसे मतलब कुछ लेना देना होता रहे, मीडिया वगैरह के जरिए से इनको मानुस किया जाए, ताकि आइंदा इंशाल्लाह वो अपने काम में मददगार बने। इनके लिए मौलाना गए थे तो अत्यार वगैरह भी लेकर गए, हदिया भी लेकर गए थे। अल्लाह ताला की कोशिश को बराबर फरमाए। इसके बाद मौलाना ये कबीर वन 5 फैक्ट्री के करीब एक बस्ती है, पूरे
वहाँ MP ग्वालियर के लोग रहते हैं। ये प्रगति में कितने मुसलमान काम करते हैं? 200 मुसलमान हैं। 200 मुसलमान। और वहाँ ग्वालियर के MP के लोग रहते हैं, 15-17 लोग रहते हैं। वहाँ मौलाना जाना हुआ, करीब के एक साथी थे डुंगरा गांव के इमरान भाई करके, उनके साथ वो 6-7 साल से काम करते थे मौलाना, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि मुसलमान। उनकी औरतें साड़ी पहनती है, मंगलसूत्र पहनती है, मांग में सिंदूर लगाती, वो बिल्कुल उनके बच्चे ये लोग फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन उनका पढ़ाई का, उनका नमाज का कोई निजाम नहीं। वो साथी की रहबरी से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का ठिया हमको पता चला, तो हमारे साथी वहाँ मुलाकातों में गए, उनको सलाम दुआ की। पहले दिन तो खाली खैर खैरियत लेकर आ गए कि भाई कहाँ के हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कितने साल से रहते हो। फिर 1-2 दिन के बाद फिर हम उनसे मुलाकात के लिए गए, फिर हमने उनको भी खाने की दावत पर जोड़ा। वो गैर मानुस है वो भी, और बिल्कुल वो भी अमाल से, दीन से बिल्कुल बहुत दूर है, तो हमने उनको फिर दावत पर जोड़ा। तो पहले दिन तो थोड़ा वो आगे पीछे हुए, लेकिन उनके एक जिम्मेदार किस्म के साथी, उनसे बातचीत हुई तो वो लोग आने के लिए तैयार हो गए। तो हमने उनको दावत की, तो वो लोग 11 लोग पहले यानी हमारी दावत पर आए। वहाँ भी आकर उनको यानी बस खैर खैरियत पूछी, थोड़ी सी ईमान अमाल की, ऐसी मोटी मोटी बातें की, तो वो लोग बहुत खुश हो गए कि भाई कोई आया, हमें हमारी कोई खैर खबर लेने आया, आज तक हमें इतने साल से रहते हैं कोई पूछने नहीं आए। बहुत खुश हुए। नमाज की उनको दरखास्त की, तो एक चाचा जी जो बड़ी उम्र के थे, उन्होंने नियत की कि हम अब इंशाल्लाह नमाज जरूर पढ़ेंगे। तो अभी आने से पहले उनसे मुलाकात हुई, तो वो कहने लगे कि मैं नाइट में नौकरी पर जाता हूँ, तो नमाज पढ़ के जाता हूँ, नमाज पढ़ के आता हूँ। वो पूछते थे कि मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता, तो कि भाई जो नमाज की यानी रुकू सजदा जो शक्ल है उससे आप शुरुआत करो और थोड़ी थोड़ी बातें सीखो। तो उन्होंने वो नमाज पढ़ना शुरू की। वहां गए थे तो उनको अपने कमरे में ले गए, उनको चाय पिलाई, तो उनके बच्चे मिलने के लिए आए, तो बच्चों ने कहा कि हम 4 बच्चे ऐसे हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, हम अपने घर में नमाज पढ़ते हैं, और 1-2 बच्चे उनके मदरसे भी जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना वो उसूल होकर कल आए भी थे, पूरा दिन हमारे साथ रहे। वो 24 घंटे के लिए आए थे, लेकिन नौकरी की छुट्टी नहीं मिली, तो वो जो है रात को हमने उनको फिर रवाना किया, तो पूरा दिन कल वो हमारे साथ रहे। उसमें वो एक चचा थे, वो कहने लगे कि हम तो जंगल, यहाँ आकर वो पूरा निजाम देखा, साथ में रहते कि हम तो जंगल में पड़े हुए थे, आपने तो हमें जन्नत में ला दिया। यानी बहुत मुतासिर, उनकी आंखों में पानी आ गए सारे। गैर पहले एक शकील भाई करके साथी थे, उनसे मुलाकात हुई, बात करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने उनको उनकी लाइन की बात की, ख्वाजा साहब की बात की कि भाई हमारे अल्लाह वाले हैं, ये सारी बातें की मौलाना, तो बहुत मुतासिर हुए। तो दूसरे दिन हमारे यानी हमको तलाश करते हुए मस्जिद तक आ गए। तो एक अल्लाह का फजल ये हुआ मौलाना कि वो बहुत मुतासिर हुए कि इशराक से पहले का वक्त था, हमारे सारे साथी अमाल में थे, तो वो देखकर बहुत खुश हो गए। फिर दूसरे दिन वो हमने उनको खाने की दावत दी, जोहर के अंदर जो खाने की दावत थी उसमें शरीक हुए थे। तो दूसरे दिन 4 बजे वो मस्जिद में आ गए तहज्जुद के वक्त, और 5-6 साथियों को लेकर आए, और फिर उन्होंने जो है हमारे साथ यानी फजर की नमाज भी पढ़ी, फजर के बाद में शरीक भी हुए, और हमारे साथ चाय नाश्ता वगैरह भी किया। अभी भी मिलकर गए थे, तो वो लोग भी साथ में आए थे। तो कल वहां से 8 लोग साथ में आए थे। आज तो उनको छुट्टी नहीं मिली, लेकिन आइंदा कल फिर से इंशाल्लाह वो आएंगे। हमने गाड़ी का निजाम किया है। इन हजरात की रात की ड्यूटी, अल्लाह ताला आसान करे। तो ये 2 जगह पर काम हुआ जी, प्रगति में, और ये कौन सी जगह है? ये कबीरवन 5 फैक्ट्री करके जगह है। और इसके अलावा पंडवाई करके एक देहात है, वहाँ मौलाना जमात तो ठहरती है, लेकिन काम की कोई शक्ल नहीं। जमात को ठहरने देते हैं, लेकिन अमाल कुछ नहीं होते हैं। तो वहाँ भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ। कितने मुसलमान वहाँ थे? वहाँ 38 मकान है और 70 बालिग मर्द है। और वहाँ ये हाल है मौलाना के नमाज में सिर्फ 2 मुसल्ली होते हैं, मस्जिद है, काम नहीं होता, लेकिन कायम करने देते हैं। मुस्तकिल इमाम साहब भी, गैर मानुस बस्ती है पूरी। तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना कयाम हुआ। वहाँ पहले दिन हम गए, तो वहाँ यानी इनफरादी मुलाकातें की, कुछ 1-2 ताल्लुक वाले साथी थे, उनके जरिए बातचीत करने की कोशिश की। फिर दूसरे दिन वहाँ गांव में नियाज थी, तो वहाँ के लोगों ने हमें नियाज की दावत दी, तो हम उनके साथ वहाँ नियाज में भी शरीक हुए, और फिर उनको करीब किया। वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह करीब खुश हो गए कि ये हमारी नमाज में यानी हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। फिर हमने साथियों ने मशवरा करके उनको दूसरे दिन उनको जोड़ने की फिक्र की।
تو مغرب کے اندر ان کو یعنی جوڑا ہم نے، تو 24 نوجوان اس مغرب کے اندر ہمارے ساتھ جڑے الحمدللہ. پہلی بار جوڑ ہوا اس جگہ پر اور چل پھر کر محنت کی الحمدللہ. تو 24 نوجوان ہمارے ساتھ جڑے. مغرب کے بعد ان کے ساتھ بھی تھوڑے مذاکرے ہوئے، ان کا کھانا پینا ہوا. پھر ہم نے تقاضا رکھا ان کو کہ بھائی ہماری جماعت اگر یہاں آئی ہے، آپ کا بستی کے کچھ احوال، کچھ نوجوان تھے، ان کو تھوڑی فکریں دلائی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک دن اور رکتے ہیں تو ہم آپ کو ساتھ دیں گے. تو پھر ہم نے ایک دن کا قیام وہاں اور بڑھایا. تو مغرب سے عشاء میں انہوں نے ہمیں ساتھ دیا اور 11 نوجوان بچوں نے ہمیں مغرب سے عشاء میں ساتھ دیا، گشت کرایا، ملاقاتیں کرائی. اس دوران 3 دن میں وہاں کے ساتھی کچھ نماز کے لیے بھی آئے. جی نماز کے لیے بھی ساتھی آئے مولانا، اور کچھ ساتھی ہمارے ساتھ یعنی 2-3-4 گھنٹے کے لیے رہے بھی، اور بھی وہ ہمارے لیے 70 بالغ مرد تھے اس بستی. اس میں سے 24 نوجوان جمع ہوئے تھے، اور انہوں کچھ نے مغرب سے عشاء کا وقت، کچھ نے اور وقت. ایک نوجوان تھا ارشاد بھائی کر کے، وہ تو پھر ہم جب تک رہے وہاں تک آتے جاتے رہے، ہمارے ساتھ کچھ اعمال میں شریک بھی ہوئے. وہاں کے کچھ ایک ساتھی نے ہماری پھر اگلے دن دعوت بھی کی، تو الحمدللہ وہ قریب ہوئے. بچوں کی تعلیم کا کوئی نظام ہے وہاں؟ ہاں مولانا مکتب چلتا ہے. کون بولا؟ امام صاحب ہی چلاتے ہیں. مکتب چلتا ہے، امام صاحب ہی چلاتے. 2 دن رہے آپ وہاں؟ نہیں، ہم نے پھر قیام کیا، ہم 4 دن رہے مولانا. وہاں پہلے جو جماعت رکی تھی نا 2 دن رکی تھی، اور 2 دن سے زیادہ رکنے نہیں دیتے. لیکن وہ ملاقات ہوئی، ایسے ٹارگٹ بنایا تھا کہ سب سے ملاقات ہو جائے. جی مولانا ملاقات ہوئی، اور کم سے کم وہاں کے متولی صاحب سے، سرپنچ صاحب سے اور گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، اور پھر وہ آئے بھی تھے ہمارے سے، اور کچھ وقت یعنی مذاکرے بھی ہوئے تھے، بیٹھنا اٹھنا بھی ہوا تھا. تو رابطہ ہوا ہے، ابھی بھی رابطہ قائم ہے. کل بھی ہم گئے تھے، ان سے بات چیت ہوئی ہے یہاں آنے سے پہلے. وہاں کی مستورات میں کوئی دینی بات کا مولانا ہم نے تقاضا رکھا تھا، لیکن وہاں مولود شریف کا پروگرام تھا اور نیاز کا پروگرام چل رہا تھا، اس لیے قابو میں نہیں آیا. ورنہ ہم نے تقاضا رکھا تھا کہ بھائی یہاں کچھ مستورات میں بھی بات ہو جائے. پہلے وہ تیار بھی ہوئے تھے، لیکن پھر رات کو ہم کو منع کیا کہ کل مولود شریف کا بھی پروگرام ہے اور نیاز شریف کا بھی پروگرام ہے، اس لیے مستورات کا پروگرام نہیں ہو پائے گا. امام صاحب کہاں کے؟ امام صاحب بہار کے ہیں. اور بچے کتنے پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ 10 بچے ان کے پاس مکتب میں پڑھنے آتے ہیں. چلیے، اور اس کے بعد آگے پھر مولانا یہاں جو ہم نے قیام کیا تھا اس میں ایک مرتبہ اور دعوت کی تھی. اس میں آمود اور اطراف کا جو غیر مانوس علاقہ ہے، وہاں کے بڑے بڑے حضرات سے ملاقات کر کے ان کو صرف دسترخوان پر ہم نے دعوت دی تھی. تو اس میں ہمارے ساتھ 5 غیر مانوس اس علاقے کے کچھ بڑے بڑے جیسے لوگ جمع ہوئے تھے. اس میں ایک محبوب بھائی کر کے جمع ہوئے تھے، محبوب بھائی کر کے آئے تھے. وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے تھے، بالکل غیر مانوس تھے، لیکن 2-3 گھنٹے ہمارے ساتھ رہے. تو دوسرے دن ان کا فون آیا وہاں کے ساتھی پر کہ بھائی آپ جماعت کے کچھ ساتھی کو لے کر رات کو دیر سے ہمارے یہاں چائے کے لیے ان کو دعوت ہے. پھر ہم ان کے گھر گئے مولانا، تو وہ کچھ بات چیت ہوئی، انہوں نے اکرام کیا. پھر ان کے بیٹے کو بلایا، تو ان کا بیٹے کو ہم نے ہلکی سی تشکیل کی، تو وہ ہمارے لیے 1 دن کے لیے تیار ہوا. وہ کالج پڑھتا ہے، انجینئرنگ کرتا ہے، تو اس کی 1 دن کی چھٹی تھی اتوار کی، تو ہمارے لیے 1 دن کے لیے تیار ہوا. تو ہمارے ساتھی نے ان سے مذاکرے کیے کہ بھائی پوچھا کہ آپ اچانک سے کیسے ہمارے ساتھ تیار ہو گئے. تو وہ کہے کہ جب سے میں آپ کے ساتھ مل کر آیا پھر بار بار میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں بس آپ کے ساتھ آ جاؤں. تو الحمدللہ اس نے پورا دن صبح سے لے کر شام تک ہمارے ساتھ قیام کیا. اس کے ساتھ تعلیم میں بھی بیٹھے، اس کے ساتھ مذاکرے بھی ہوئے. ابھی بھی انہوں نے ان کے ساتھ ہم ملاقات کر کے آئے ہیں. آج انہوں نے آنے کی نیت کی ہے انشاءاللہ، تو ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہے، امید ہے کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ. جہاں جہاں آپ کی محنتیں ہوئی ہیں وہاں کے ساتھی آئے تو آپ اپنے ہی خطے میں، اپنے ہی گالوں میں، اپنے پاس ان کو قیام کرواؤ، ان کو مانوس کرو، اور انشاءاللہ ان کا اکرام کرو. یہ مزید آپ کے لیے تقویت کا باعث بنیں گے. ضرور انشاءاللہ. کل بھی ہمارے ساتھی رہے تھے اور ان کا اکرام بھی کیا، اور آئندہ کے لیے بھی وہ عزائم کر کے گیا کہ جب بھی آپ کا ایسا پروگرام ہو نا ہم کو ضرور بلا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین کی بات کو سننے کے لیے مولانا صاحب کو بلانا پڑتا ہے، 4-5 ہزار کا خرچہ ہو جاتا ہے. آپ تو ہمیں کھلاتے پلاتے اور مفت میں دین کی بات سناتے ہو، اور ہم نے ایسی بات تو کبھی سنی بھی نہیں ہے. اللہ رسول کی بات، کل ظہر کے بعد کی بات ہوئی کہ مہمان کے اکرام کے بارے میں، تو ہم نے زندگی میں پہلی بار ایسی بات سنی کہ مہمان کا اتنا بڑا درجہ. الحمدللہ بہت متاثر ہوئے. یہاں سے کتنا دور ہے؟ 3 دن میں
3 दिन की जमात वगैरह से आप पहुंच सकते हैं वहाँ पे? जी पहुंच सकते हैं। साल भर में जो इनसे राब्ता रख सकते अभी भी हमने वहाँ 2 दिन कयाम किया और मुलाकातें आइंदा भी हमारे साथियों ने नियत की है कि इंशाल्लाह हमारी 3 दिन की जमातें बारी बारी इंशाल्लाह वहाँ आते जाते रहेंगे। ऐसा उस बस्ती से करीब में हमारी कोई ऐसी आबाद बस्ती कि जिसमें अच्छा काम हो रहा हो? कोसंबा है। अच्छा, तो अगर वो हजरात को जरा मुतवज्जे कर लिया जाए तो दूसरे गश के उन्वान पर हर हफ्ते इन हजरात के पास जाना हो जाए और हफ्ते में 1-2 मरतबा भी जाना हो जाए तो इंशाल्लाह चंद दिनों में ये बस्ती कवर हो सकती है और वहाँ के 100% लोगों को मस्जिद की तरफ माइल करना इंशाल्लाह आसान हो सकता है। अल्लाह ताला आसान करे और करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला और सब किसी जगह प्रोग्राम मस्तूरात का नहीं हुआ? नहीं बोला, 2 जगह पर मस्तूरात के प्रोग्राम किए अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह पर 10 बहनें जुड़ी थी और एक जगह 18 बहनें जुड़ी थी। आपके साथी कितने थे? हमारे 12 साथी थे मौलाना। साथियों को क्या फायदा हुआ इस जोन की जमात में निकलने से? मौलाना जब ये बातें सुनी, ये लोग मस्जिदों में आए, इनके पास जाना हुआ तो साथियों को दिल में चोट लगी। बहुत यानी साथी बहुत मुतासिर हुए कि हमारे इतने करीब का इलाका है और ये मुसलमान ऐसी हालत में जिंदगी गुजारते हैं कि कलमा नमाज भी नहीं जानते। पंडवे में जाना हुआ कि इतनी बड़ी बस्ती है और सिर्फ 2 नमाजी हैं। तो साथियों को एक बहुत यानी एहसास हुआ और साथियों ने नियतें भी की कि इंशाल्लाह अब ऐसी बस्तियों में अपने 3 दिन भी लगाएंगे, हम इंशाल्लाह मेहनत भी करेंगे और जोन में भी बार बार निकलने का साथियों ने इरादा किया। 6 या 7 जगह पर अलग अलग मौलाना दस्तरखान के उन्वान पर अल्हम्दुलिल्लाह साथी जुड़े। करीब 100-110 के करीब साथी जुड़े थे और उसी में से अक्सर लोगों के साथ ताल्लुक भी हुआ और उसी में से अक्सर लोग आए भी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यानी साथियों ने ये भी नियतें की कि ये ऐसा मजमा है कि इनके पीछे खर्च करते हैं तो बहुत जल्दी नतीजे मिलते हैं। तो इसमें एक नौजवान यानी डुंगरा बस्ती में हम थे तो वहां से एक नौजवान यानी नकद तश्कील हमने की कि हमारे साथ कुछ साथी वक्त लगावे। तो एक स्टूडेंट हमारे साथ छुट्टियों का जमाना था तो 3 दिन के लिए चला। तो 3 दिन चलने के बाद वो बहुत खुश हुआ तो यानी उसकी छुट्टी में 9 दिन बाकी थे तो उन्होंने 9 दिन हमारे साथ गुजारा। तो नकद यानी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यानी वक्त लगाया और वो पूरे 3 दिन के लिए वो डुंगरा बस्ती से 5 साथी वसूल होकर आए और वो तीनों 3 दिन हमारे साथ है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इससे पहले आप हजरात की जमात में सोन में वक्त लगाए हुए साथी थे? जी थे मौलाना। ठीक है, बेहतर। आ जाओ दूसरी जमात आ जाओ। जगह पर पहली दफा जमात गई आपकी या इससे पहले भी कोई जमात गई? इस रूट पर इस रूट पर मौलाना जमात गई थी लेकिन ये प्रगति क्लास में है ना मौलाना, इससे पहले यानी हमारी जमात भी एक मरतबा पहले गई थी। इनसे राब्ता करने की कोशिश की थी लेकिन इन्होंने कोई यानी रिस्पांस नहीं दिया। तो इस जगह पर पहली मरतबा अंदर जाना हुआ। ये एमपी ग्वालियर वाले लोग भी पहली मरतबा मिले। हालांकि मौलाना काफी साल से जो बंदा उनके साथ काम करता है उनको 5-6 साल बाद पता चला कि ये मुसलमान। तो ऐसे 3-4 जगह ऐसी मिली कि वहाँ जो है यानी पहली मरतबा मिली और हमने उनके करीब 1-2 जगह कयाम करने की कोशिश भी की कि भाई कुछ गोडाउन वगैरह में कयाम हो जाए, हमने यानी किराए पर मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन वहाँ भी कुछ तरतीब नहीं बनी। ये तो हम इंशाल्लाह वहाँ कयाम भी करते और आगे इरादा भी किया है कि इंशाल्लाह वहाँ कयाम करके मेहनत करेंगे। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप हजरात की जो जमात चली है वो जमात अगर 2 हिस्सों में तकसीम होकर अपने साथ नए साथी लेकर मुसलसल 3 दिन के उन्वान से इन बस्तियों को इंशाल्लाह निशाना बनाएगी तो थोड़ी सी मुद्दत में इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा और ये राब्ता तसलसल बाकी रहना चाहिए। ये जैसे प्रगति क्लास में गए तो इससे पहले 2-3 मरतबा गए थे लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब माशाल्लाह कुछ मिला है, कुछ थोड़ा सा ताल्लुक हुआ है, मानूस हुए हैं, तो इस उनसीयत को तसलसल के साथ बाकी रखना है ताकि आइंदा की जमात के लिए भी आसानी हो जाए और इंशाल्लाह आइंदा तो अल्लाह करे कि वहाँ कोई ठिया ठिकाना ऐसा बन जाए कि मुस्तकिल वहाँ नमाज का निज़ाम बन सके। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है, दूसरी जमात आ जाओ, उल्फाड़ की जमात। मैं ऊपर हल्के की जमात में नेत्रंग हल्के में काम किया। 9 साथी थे। कौन सा? नेत्रंग हल्के। और उनमें चलने वाले साथी भी 2-3 से पहले जो चल चुके थे और 8 साथी 4 महीने वाले थे और एक ही साथी छूटे हुए थे। पहले जुमा मस्जिद के अंदर कयाम किया, 4 दिन का कयाम हुआ। वहाँ पर पहले दिन 4 महीने की वसूली आई
और फिर 2 दिन बहुत क्याम हुआ था। एक जो जमात जाने वाली थी स्टूडेंट की, मेहनत हुई थी वहाँ पर, लेकिन स्टूडेंट की जमात किसी वजह से लेट हुई। एक जमात थी तो एक के बजाय दूसरी एक जमात की मेहनत हुई। उन साथियों में से दोनों साथियों को डिवाइड किया, तो दूसरी जमात भी बन गई। 2 जमात स्टूडेंट की, एक तो तैयारी थी अशरे की स्टूडेंट की जमात। और उसके बाद वहीं के मकामी पुराने साथियों की मुलाकातें हुई, राब्ता हुआ और ज़्यादा मुलाकातें पुराने साथियों की। वहाँ पर 8 साथियों की वसूली हुई, टोटल 9 दिन तक। जो एक जुमा मस्जिद के अंदर 4 दिन क़याम किया और बाकी 2 मस्जिदों में 3 दिन क़याम किया। ये 8 साथी 4 महीने के लिए वसूल हुए। एक साथी 4 महीने के लिए वसूल हुए और 8 साथी चिल्ले के। आपने आवाज तो 4 महीने ही की लगाई थी जी। चलिए। उसके बाद शरीफ के जो देहात थे वहाँ पे मुलाकात हो रही थी पेट्रोल पंप पे, और सिटी लोग जो जानवर बेचने के लिए आते हैं, भैंस बैल वगैरह, उन लोगों की मुलाकात हुई। और पंचर वाले, होटल वाले, इनकी मुलाकात हुई। और एक बस्ती ऐसी जो नाना जामुड़ा कहते हैं, वो सलीम भाई वहाँ के बस्ती के लोग यूँ कहते थे कि सलीम भाई किसी से मुलाकात करते नहीं, तुम न जाओ तो बेहतर है। लेकिन फिर भी हम 2 साथी गए थे, तो घर से बाहर आकर तो मुलाकात नहीं की। जैसे वो जाली होती है ग्रिल वाली, लोखंड वाली, वही जाली से बाहर मकान के अंदर खड़े रहे अपने घर में, और हम ओटले के ऊपर बाहर खड़े थे। और वहीं से कुछ दिन की बात हुई। और फिर एक साथी हुसैन चाचा करके थे वहाँ नाना जामुड़ा में, 2 ही मकान है उसका। लेकिन सलीम भाई को भी पता नहीं कि इतने सालों से मैं रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर दूसरा भी एक मकान है जो हुसैन चाचा का है, तो इतने सालों से वो रहते, वो उनको ही पता नहीं। नेत्रंग से कितना दूर है ये बस्ती? ये तकरीबन 11-12 किलोमीटर है। आपका क़याम नेत्रंग की जामे मस्जिद में ही था? नहीं, उसके बाद दूसरी मस्जिद है मेन रोड के ऊपर। यानी नेत्रंग में क़याम था और नाना जामुड़ा आप मुलाकात के लिए गए थे। जी। वहाँ मुसलमान कितने? 2 ही मकान है? 2 ही मकान है। मुझे बस्ती वालों ने भी एक ही मकान बताया था। अच्छा। लेकिन वहाँ पर जब हम गए तो तब पता चला, वो गाँव के अंदर रहने वाले को भी पता नहीं था। ये हमको शक्ल से ऐसा लगा, तो सीधा हमने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया, तो हमको ही पता चला। उनको भी इज्तिमा की दावत पहुँचा और नमाज की तरगीब दी। और हम क्यों चलते हुए सलीम भाई से बात नहीं सुनते थे, अपने मकान के अंदर ही खड़े रहकर उन्होंने बात सुनी। पहले बात सुनते ही नहीं थे, आते ही नहीं थे, बाहर नहीं आते थे। इस वक्त मतलब उन्होंने बात सुनी और वहाँ तक बात पहुँचाई। इसके बाद एक सलीम भाई आरब, एक वरखड़ी गांव के अंदर रहते हैं, एक ही मकान है। इससे पहले मकान थे, लेकिन किसी वजह से, वो हालात की वजह से लोग छोड़कर चले गए। उनकी जमीन थोड़ी ज्यादा है, जमीन की वजह से वो वहाँ पर रुके हुए। उनकी 2 मस्तूरात है, 2 निकाह की है, जिसकी वजह से बड़े मसले के अंदर थे, और वो भी बात कभी सुनते नहीं थे। लेकिन तकरीबन 1.5 घंटा हम उनके पास बैठे और उनको तरगीब दी। उनके जो हालात थे, तो उनके हालात के एतबार से सहाबा के हालात भी बताए कि ऐसे तो जिंदगी होती है और इम्तिहान के आपके अंदर हम हैं, इस तरह से उसको बात समझे। इससे पहले वो बात सुनते नहीं थे सलीम भाई आरब। इनके बच्चे भी हैं? इनके बच्चे बहुत छोटे हैं, मकतब की कोई निजाम है नहीं। उनको नेत्रंग में इससे पहले 6 महीने रहकर गए, फिर से उनको तरगीब दी और नेत्रंग की बस्ती के अंदर अगर आ जाए तो बच्चों की दिन तरबियत हो जाए, ऐसी उनको तरगीब दी। नेत्रंग से कितना है? मेरी 13 किलोमीटर वरखड़ी। और उसके बाद फिर एक लग्जरी आई, जो मांगने वाले होते हैं, लोबान जाने वाले, हमने उनका नाम रखा था। तो वो यहाँ कोसंबा के अंदर भी आते हैं, पूरी वहाँ से डेवलप होते हैं, पूरी लग्जरी वहाँ पर आई हुई थी। तो वहाँ हमको जब पता चला तो हम लोगों ने उनको मस्तूरात के साथ जोड़ने का वो कहा कि एक तरफ पर्दा लगाकर अगर मस्तूरात को भी जोड़ा जाए और एक तरफ मर्द भी हो। तो हमारे अक्सर साथी का के जा चुके, अभी यहाँ पर है नहीं। तो फिर 11-12 साथी से मुलाकात करके उनको इज्तिमा की दावत दी और नमाज की तरगीब दी। उनमें से 3-4 साथी मस्जिद के अंदर, बाजार के अंदर जो मस्जिद है, और एक मस्जिद वहाँ लाल मिट्टी के पास है, वो मस्जिद के अंदर 2 साथी आए और 3 साथी वहाँ अब्दुल गनी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए शुरू हुए, उनमें से जो नेत्रंग गली के अंदर मांगने का काम करते हैं। और उसके बाद वहाँ से झरना गांव के अंदर हम गए, वहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर है। वहाँ से एक कोयली मांगी झरना गांव के अंदर तो मानस बस्ती है, और वहाँ 100% हमारे दिन की दावत पहुंची।
हर घर के अंदर पर्सनल की मुलाकात 100% मुलाकात हुई। हमारे कड़ी वाले फैमिली रहते हैं, और हमारे साथ भी कड़ी वाले फैमिली के साथी थे, तो उनकी रिश्तेदारी की वजह से 100% मुलाकात भी हुई। और कितने मकान थे वहाँ पर 23 मकान है, और वहाँ से कोयली मानवी मस्जिद मदरसा पूरा है, मदरसा है। वहाँ से कोयली मानवी के अंदर एक मकान है, बदरुद्दीन चाचा वहाँ पर रहते हैं, और उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम नवीन है और एक का नाम नासिर है। तो नासिर की तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन नवीन ने वह मुलाकात की, नासिर से बहुत राब्ता किया, लेकिन वो नेत्रंग के अंदर हमको मिले थे, नेत्रंग में उनकी मुलाकात हुई थी। और ये नवीन जो था वो गैर है, वो ये ऐसा ही है कि उनकी जो एरिया थी वो वसावा थी, और इससे पहले वो नवीन भाई अपने वालिद से बहुत नाराज थे, तो हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। हमने फिर उनको थोड़ा समझाया भी कि बाप तो बाप ही होता है, उसको चाहे जितना भी बुरा हो, इस्लाम के अंदर बाप का क्या मकाम है, ये चीजें बताए। उन्होंने फिर चाय भी पिलाई और हमारी बात भी सुनी, और थोड़ी हल्की से ऐसे इशारतन बात की गई ताकि उसको इस्लाम के करीब हो, कि इस्लाम के अंदर हर चीज का इंसाफ है। इस तरह से उनकी बात हुई। और वहां से फिर एक खानसरी है, वहां पर 2-3 मरतबा कोशिश की, लेकिन आगे पता नहीं क्या हुआ था कुछ, कि बगैर परमिशन के कोई साथी अंदर चले गए थे मुलाकात के लिए, जिसकी वजह से इस मरतबा उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। कितने मुसलमान हैं वहाँ? वहाँ पर 7 मुसलमान अंदर काम करते। और फिर वहाँ से वांगरिया गांव के अंदर गए थे, वहाँ पर जमात जाती है तो कोई भी नमाज नहीं होती, और जब जमात चली आती है तो फिर वहाँ पर 4-5 नमाज पढ़ते हैं। उनको उनसे मुलाकातें भी की, तो नमाज की तरकीब भी दी, लेकिन नमाज होती तो किसी जमात मौलाना ये कहते हैं, मौलाना सादिक साहब के जमात आई थी, उन्होंने ज्यादा तस्वीर के लिए इतने दिन चलो हम तुम्हारा खर्चा करें, थोड़ा ज्यादा उनको शिद्दत के साथ दावत दी, तो उसमें थोड़ा वो डर जाते हैं, वो कभी ये माहौल के अंदर गए नहीं। और उसी बस्ती के अंदर एक हुसैन चाचा थे, उनकी मुलाकात के लिए गए, 6 साल के बाद कोई मुसलमान हमने मुलाकात के लिए आया, वो बहुत खुश हुआ। उनके घर के अंदर यानी वो क्रिश्चियन का फोटा जो होता है उनकी, और मंदिर का मूर्ति के फोटे वो भी रहते हैं, और मुसलमान का दरगाह का मस्जिद का भी फोटा, ऐसे यानी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर थे। हमारे साथी ने कुछ उनको कलमा भी पढ़ाया, उनको दावत भी दी, और दिन की हकीकत को थोड़ा मानुष के बिल्कुल जाने। बस्ती के अंदर 21-22 मकान है, और बाकायदा मस्जिद बनी हुई है, और कयाम की पूरी शक्ल है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन फिर भी वो मस्जिदों से दूर है। और उसके बाद एक नमाज होती है कि नहीं होती? नमाज होती है मौलाना, और मकतब भी चलता है। 21 मकान है, तो वहाँ नेत्रंग से करीब पड़ता है? नहीं ये हल्के में ही होगा। झलवा गांव से करीब है, नेत्रंग से तकरीबन 18-19 किलोमीटर होता है, वालिया के करीब होता है, वालिया के करीब। और फिर वहाँ से वांगरिया गांव से छोटे 3-4 देहात है वांगरिया के करीब में, वो 3-4 बस्ती के अंदर, वहाँ पर भी एक बस्ती के अंदर एक हाफिज कुरान 7 पारे हाफिज हुए हैं। खरोड़ के अंदर उन्होंने 7 पारे हाफिज हुए थे, उसके बाद छोड़ दिया, और वो भी जमीन ही के लिए पड़े हुए। और एक जगह जो है वो दुकान के लिए वहाँ पर है, वहाँ पर 2-3 ही मकान है। और एक जगह पर जो मुलाकात हुई, साथी अल्ताफ भाई का तो इंतकाल हो गया, तो दूसरे पैर से माजूर है, वो भी जमीन ही के लिए है, लेकिन उनको जब कल कांटेक्ट किया तो 2 साथी आज आने वाले हैं वहाँ से। और पूरी बस्ती यानी गैर मानुष है, वो तकरीबन 3 बस्ती से मिलाकर 13 लोगों की मुलाकातें हुई थी, है 19 आदमी तीनों बस्ती मिलाकर, लेकिन 13 आदमी की मुलाकात हुई थी। बाकी एक साथी का भी इंतकाल हो गया, और बाकी साथियों की मुलाकात नहीं हुई, उनमें से 2-3 साथी आज आने वाले। और वहाँ से फिर हम दिल्ली गए थे, दहली गांव के अंदर भी 100% अगर मुलाकातें हुई। वहाँ पर भी बस्ती के अंदर अक्सर गैर मानुष लोग है, लेकिन क्या वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर मेहनत ज्यादातर नमाजी की हुई, नमाज की तरगीब दी, और वहाँ के साथी कुछ साथी नमाज के अंदर शरीक भी होने लगे। और उसी गांव से हमने करसाड़ और देसाड़ करके 2 गांव है, एक बस्ती में तो कयाम होता है, लेकिन एक के अंदर वो एक साथी है, वो साथी इतने शदीद है, तो वो बोलते हैं कि यानी आगे पिछली जमातों ने काम किया है, और उन्होंने तरगीब दी कि हम लोग आपको इबादत खाना बना देंगे। और एक साथी है, वो साथी ने मकान देने के लिए उसने कहा है,
लेकिन वो एक साथी बस ऐसे बिल्कुल चले गया। वो साथी पहले बात सुनते नहीं थे, लेकिन वो थोड़ी रिश्तेदारी की वजह से हर एक की मुलाकात हुई, एक ही साथी की मुलाकात नहीं हुई और वो इबादत खाना बनाने ही नहीं देते। और पता नहीं वो कोई मौलाना आते हैं और आकर उनको मकतब का निजाम है, बच्चों को पढ़ाकर चले जाते हैं। आधा घंटा पौना घंटा बस ये पढ़ाई होती है, वो चले जाते हैं, वरना नमाज के एतबार से कोई निजाम नहीं, कोई निजाम नहीं। और फिर वहाँ से आपने वहाँ क़याम किया? नहीं, वहाँ क़याम नहीं किया। तो अगर मस्जिद थी तो वहाँ क़याम क्यों नहीं किया? मस्जिद नहीं, मस्जिद वहाँ क़याम नहीं। मस्जिद इबादत खाने की तरगीब दी। अगर टेंट होता आपके पास तो उस बस्ती के अंदर में क़याम हो सकता था। जी, अब अगले 2018 में हम लोग चले थे, वहाँ क़याम किया था। और उसके बाद फिर दूसरी बस्ती ऐसे तो बहुत सारी, हर बस्ती मस्जिद की कारगुजर के सुने, लेकिन एक चीज है कि 6-7 एक बस्ती सुखियापुरा के अंदर ऐसे है कि जहाँ तकरीबन 11 मकान है और वो मकान के अंदर एक भी मकान ऐसा नहीं जो खालिश मुसलमान का हो, या तो औरत वसा हुई है या तो फिर मर्द वसा हुआ है। वहाँ एक साथी का चिल्ला लगा हुआ है, मकसद का भी निजाम इबादत खाना भी वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन मस्जिद से अंदर आने के लिए वो तैयार नहीं होते। तो मौलाना से रब्ता किया और उस वक्त में हमारे नमाज का मौका तो नहीं मिला, क्योंकि सुबह में जाना पड़ता है, फिर वो लोग सब काम पर चले जाते, फिर शाम तक मिलते नहीं। तो वहाँ पर उनको तरकीब थी, इमरान भाई है, अफजल भाई है, वहाँ पर जो साथी थे उनमें से मोहम्मद भाई जो है वो थोड़े फिक्रमंद है। मोहम्मद भाई ने नमाज शुरू की। तो अकेले हजरत की मुलाकात कहाँ हुई? इनके घरों पर? इनके घरों पर ही, सुबह में जल्दी गए। तो आप जब बात करते थे तो इनकी मस्तूरा सुनती थी? जी, बात उनके मकान में बैठकर ही बात। इसका कुछ तासुर लिया इन हजरत ने? आप हजरत की जो बात सुनकर उन्होंने कोई तासुर लिया हो, कोई नमाज का आज़म किया हो, आइंदा के लिए कोई करने का आज़म किया हो ऐसा? मोहम्मद भाई ने कहा कि जमात आपकी अगर यहाँ क़याम ही करती तो बेहतर है, कि वहाँ पर थोड़ा शक्ल नहीं बनी। इनके दादा मौलाना उनके जो 18 बालिग मर्द है, वो जो गांव की बात करें ना मौलाना, उनके दादा जो थे वो बहुत बड़े आलिम थे। पंजाब के इलाके में से कहीं से आए थे और बड़े आलिमों में से, और उनकी बड़ी बड़ी किताबें भी थी। वो बाजू के गांव में एक मौलाना है, उनको दी है। तो वो तीसरी पीढ़ी जो है उनको मुर्तद हो गई। फिर वापस ये जौन की जमातों ने ये कर फिर वापस उनको कलमा पढ़ाया और इबादत खाना भी साथ में बनाया। ये 18 बालिग मर्द है जी। ऐसे पूरे सफर के अंदर 11 लोगों ने हमारे साथ वॉक लगाया, किसी ने 1 दिन, किसी ने 2 दिन, और एक जगह पर 2-3 जगह ऐसी जगह हुई जैसे जीआईडीसी, अमृतसर जीआईडीसी। यहाँ 2 लोग जो बेकरी के अंदर काम करते हैं यूपी के, उनमें से 2 साथी ऐसे जिनको कलमा भी नहीं आता था। और जीआईडीसी, उसी जीआईडीसी के अंदर एक साथी ऐसे थे जिनको कलमा नहीं आता, उनको भी कलमा सिखाया। और 3 साथी ऐसे संजारी जीआईडीसी के अंदर, वो 3 साथियों को कलमा सिखाया। और एक जगह कुल कितने साथियों को आपने चिल्ले के दौरान में कलमा सिखाया? 6 साथी। और एक जोड़ा ऐसा नहीं, वहाँ पर 3-4 लोग हैं, उन्होंने भी बताया था। लेकिन एक महाराजा नगर है संचाल जीआईडीसी में, महाराजा नगर बिल्डिंग है और बिल्डिंग के पीछे एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी के अंदर एक फैमिली रहती है, 3.5 साल हो गए हैं, अभी तक निकाह नहीं किया है। जहाँ तक शादी की थी उसके बाद निकाह नहीं किया है। तो उनको तरगीब दी, यूपी के ही है, तो बोला हम आगे ये जनवरी के अंदर हम जाने वाले हैं और वहीं पे निकाह करें। उनको थोड़ी तरगीब दी उन्होंने। और दूसरे 3 लोग ऐसे बताए जिनका निकाह हुआ नहीं वहीं पर। तो उन लोगों से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन वो उनका टाइम ही सेट नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हो सकी। वो कुछ जिम्मेदारी उनकी बड़ी थी कंपनी के अंदर, तो मुलाकात नहीं हो सकी। और ज्यादातर संचारी जीआईडीसी के अंदर हाफिज कुरान कोई एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर रेसिडेंसी है, वहाँ पर एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर कोई हाफिज कुरान न हो और आलिम दीन न हो। वो सारे लेकिन फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो उनको मस्जिद करीब में है, तो नमाज अगर न पढ़ सके तो हमने बिल्डिंग के 2 बिल्डिंग वालों से, इकबाल भाई की जो बिल्डिंग है वो उनसे मुलाकात की, और एक साथी जो मुख्तार बिल्डिंग है, ये 2 बिल्डिंग के मालिक से मुलाकात की और उनसे कहा कि अगर आप एक कमरा इनको दे दें, तो मस्जिद इनको दूर पड़ती है
और थक कर आते हैं तो मस्जिद तक आकर नमाज पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल लगेगा। इसके लिए अगर आप यहीं पर एक कमरा इनको दे दे और यहीं पर तो हाफिज कुरान तो है ही, यही लोग नमाज पढ़ लेंगे, कम से कम एक दो नमाज जिंदा हो जाए। इस तरह से तरगीब भी थी, लेकिन वो कुछ अभी शुरू हुआ नहीं। हमारी तौर पर आपने वहाँ शुरू नहीं करवाया, नहीं, आप हम अपने साथ नमाज पढ़वा लेते किसी को? वो वहाँ पर करीब में ही दोनों मस्जिदों के दरमियान में एक इबादत खाना है महाराजा नगर में और संजाली गांव की जुमा मस्जिद है। तो ये इन बिल्डिंग वालों से कुछ मुलाकातें हुई आपकी? हाँ, मुलाकातें बहुत ज्यादा हुई। आलिम भी और हाफिज भी, सबकी मुलाकातें हुई? उनमें से 55 साथी आए हैं। यहाँ पर पहुँचे? कल सुबह में दोपहर तक में 24 साथी आए थे। अभी ईसा के नमाज के बाद में उन्होंने बताया कि 55 साथी हुए। जिनमें से शाम को 24 साथियों की हमने दावत की थी, हमारे साथी ने दावत की थी, और बाकी 23 साथी आज आने वाले हैं। पूरे चिल्ले के दौरान कितनी जगह आपका क़याम हुआ? 15 जगह क़याम हुआ और 22 बंजर बस्तियों में मुलाकातें हुई, जहाँ पर एक ही मकान है, 2 मकान है, 5 मकान है। कोई अंदाजा लगाया कुल कितनी मुलाकातें हुई होगी? ज्यादा वो बस्तियों में तो मुलाकातें नहीं हुई क्योंकि कम होते थे, लेकिन ये संजाली और अंकलेश्वर जीआईडीसी के अंदर मिलाकर अगर देखा जाए तो 900 के करीब में मुलाकातें हुई। कुछ पैदल भी चलना हुआ आप हजरत? जी नहीं, पैदल से ठीक है, अल्लाह ताला जी, पैदल चलना नहीं हुआ। पैदल भी। ठीक है, तीसरी जमात आ जाए। आपकी जमात कहाँ चली और कहाँ की थी आपकी जमात? हमारी जमात कीम चौकड़ी। कीम चौकड़ी जी। हमारी जमात में 9 साथी थे। हमारा जो ग्रुप था वो राजपीपला की तरफ था, तो हमारी जमात जो यहाँ से गई राजपीपला मस्जिद में गया। वहाँ से जो मुझे अतराफ के इलाके दिए थे, जैसे राजपरा है और जूरा राज है और ऐसे ऐसे अलग अलग जो गैर मानूस जो है इलाके हैं, वहीं का जो है हमें रुक दिया। तो हमने उनमें से जो है पहले सबसे पहले हम जूना राज था, वहाँ गए थे। ये सबसे ऊपर की डैम पे आबाद है ये बस्ती, वहाँ। तो वहाँ से जो है हमारे लगभग 4 साथी गए थे, कार लेकर गए थे। हम जहाँ पे जाते थे कार से मुलाकात के लिए जाते थे। अलग अलग दूर दूर बस्तियाँ थी, डैम पे थी, लगभग 20 किलोमीटर दूर थी। यहाँ 6 मुसलमान थे, 6 मुसलमानों के घर थे। उनमें से कई लोग जो है मुर्तद भी हो गए। पहले भी वहाँ मस्जिदें थी जो डैम के अंदर चली गई, हमने वहाँ तक भी गए थे, वो पानी के अंदर अभी भी मौजूद है और नजर भी आती है। तो वहाँ लोग एक दरगाह है, उसके दरगाह पे लोग जाते हैं और फिर वहाँ पे बल्कि हमारी मुजावर से भी मुलाकात हुई। वहाँ अल्लाह रखा करके भाई है, वहाँ एक साथी जो है चिल्ला लगाया हुआ है और वो चिल्ले वाला जो साथी है वो अभी उसका नाम जो है बल्कि गोविंद रख दिया है, ऐसा है। और वो पुराना साथी है और लगभग जो है कई मरतबा जो है नेत्रंग वालों ने मेहनत भी की, वहाँ गए भी, लेकिन वहाँ पे जो है ऐसा कोई जो है बीच में ऐसा हो गया कि एक बार मुसलमान आए थे तो उन्होंने ये इश्काल किए कि हमें जो है गाँव वाले भी थे कि ये लोग आकर हमें फेरना चाहते हमारे मज़ार से। कुछ लोग जो मुर्तद हो गए थे, वहाँ के बड़े लीडर लोग जो थे उन्होंने उनका साथ दिया और मना कर दिया था कि यहाँ पर आप लोग आना मत। तो बस्ती वालों ने भी इरादा किया, बल्कि मशवरे भी किए थे कि वहाँ जो है जाना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मेहनत मतलब एक दो साथियों की जो है मदद से जो है उन्होंने कहा, हिम्मत दी, तो हम गए थे। ऐसे कोई इश्काल नहीं है। वहाँ पहुँचते उनको कुछ मालूम भी नहीं होता है कि हमारे ऐसे दरगाह की वजह से थे कि हम दरगाह पे आए तो अल्लाह रखा के घर में गए, वहाँ मुलाकात की और उन्होंने देखा माशाअल्लाह वो जो है अपने घरों में अल्लाह के घर की फोटो रखी हुई है, तो उनको तरगीब दी आप नमाज पढ़ते रहना, यहीं पे अल्लाह की इबादत करना, जुम्मा पढ़ने यहाँ आते हैं। और फिर उसके बाद जो है गोविंद भाई जो चिल्ले वाले थे वो भी आए, उनको भी जो है उनका नाम गुलाम भाई रखा था। तो पहले गैर मानूसी थे लेकिन फिर वो गुलाम भाई से फिर गोविंद भाई में गए हैं। तो मेहनत की हमने, माशाअल्लाह जो है उन्होंने जो है इसका असर लिया और फिर जो है फिक्रमंद है कि ताकि जो है उनका नंबर भी
लेके आए, वहाँ फोन भी नहीं लगता, नेटवर्क भी नहीं। दूसरा जो है हमारा गांव जो दिए थे वो राजपाड़ी, जुआरपाड़ी, ये जो गुलाम भाई थे वो कौन सी बस्ती थी? ये जूनाराज। जूनाराज। इसके आसपास में हमारी कोई आबाद बस्ती जहाँ काम होता? ये राजपीपला। ये डैम पर है, जाने में भी हम बड़ी बड़ी मात्रा के पहाड़ों पे चलकर गाड़ी लेकर जाना हुआ। पहुंचने में तो हमें तजुर्बा नहीं था, तो 3 घंटे लग गए, लेकिन वापसी में हम 40 मिनट में उस सफर को वापस करके चले आए। जल्दी का सफर है, लेकिन हम तो ऊंचाई इतनी थी तो उससे राजपीपला वालों के सामने ये कारगुजारी वगैरह अहवाल है? हाँ है उनके पास, उनको बता के आए थे, वो भी बड़े खुश हुए कि यहाँ जाना नहीं होता था और अब जो है रास्ता खुला है। तो इंशाअल्लाह हमारे राजपाड़ी के जो साथी है वो बेचारे राजपीपला के, वो मेहनत के लिए अब इस गांव में जाते भी हैं। अभी आने से पहले भी गए थे, लोगों से मुलाकातें भी की थी, तो हम भी कर गए थे वहाँ पे, जो है मेहनत करके उनको दावत दी है कैसे गाँव में वो आवे यहाँ साथ। वो गैर मानुस है, कब्र की मोहब्बत उनके दिलों में बसी हुई है, उनके घर घर में मतलब कब्र, वो जो जावे उनकी मेहनत करे। उनके बापू आते हैं तो साथ में मेहनत करते हैं, तो उनके साथ ही रहते हैं। ऐसा कोई शक्ल नहीं, पहले जमात की शक्ल में जाती तो उनको जमात की तरफ बढ़ गए, 2-4 साथी जाते हैं तो वो मानुस हो जाते हैं, कि वो समझते हैं कि हमसे मिलने आए, खैरियत लेने आए। इसी जरिए से उनके साथ में जो है मेहनत करके काम हो सकता है। फिर उसके बाद हम जुआरपाड़ी गए थे, वहाँ पर जो है 35 घर थे, 60 बालिग मर्द थे, उनको जो है दावत की थी, वहाँ पे जोड़ा था। वहाँ पे भी दरगाह है, लोग दरगाह पे जाते हैं और उन दरगाह पे आने वाले, उनका जो है मस्जिद वहाँ दरगाह के पास बना रहे थे, तो अभी वैसे ही रुकी हुई है। तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान भी है, उसी में मस्जिद भी है। नमाज का कोई अहवाल नहीं, कोई नमाज पढ़ने वाले भी नहीं थे। माशाल्लाह वहाँ पर जाकर मेहनत भी की। तो अब जो है साथी वहाँ से लगभग 6-7 आदमी जो है अभी भी नमाज पढ़ते हैं एक घर में जमा होकर, एक साथी। हाँ, दूसरा गश्त भी यहाँ से साथी जाकर करते हैं। वो भी 15-20 किलोमीटर के करीब में है साथी, अभी भी दूसरा गश्त वहाँ चालू कर दिए है। 6-7 साथी जो है नमाज पढ़ते हैं। और हमने वहाँ गए थे तो वहाँ के साथियों के दिलों में जो है ना बड़ी फिक्र है, बड़ी उड़न है कि कैसे हम सब, हमारी जो है हमारी नस्लें कैसे सवर जाए, इसके लिए वो फिक्रमंद है। एक साथी ने तो हिजरत करने का भी इरादा किया था कि तर्केश्वर हम चले आएंगे, तो उसका जो है अहवालात ऐसे हैं कि वो आदमी वहाँ चक्की है, कारोबार है, खानदान है, तो उसको छोड़कर वो बेचारे आ नहीं सकते। लेकिन हिम्मत तो बहुत है, हिम्मत करते हैं कि एक बार जो है उन्होंने अपने भाई को यहाँ तर्केश्वर में पढ़ते थे, तो उनका एकदम जो है तय हो गया था कि आ जाएंगे, लेकिन अब जो है फिर उनके भाई वहाँ से चले आए हैं। अब उनकी जो है हिम्मत नहीं हो पा रही, वो बेचारे हमारे साथ रात तक मगरिब अपनी घंटी को जो चक्की थी उनकी आटे की वो भी बंद करके इंशा तक हमारे साथ बैठे रहे। और वो मैंने कहा आपकी चक्की का हरज होगा, तो नहीं, उन्होंने कहा ये तो चक्की तो चलती ही रहेगी। घर वाले ने उनकी जो है चला के फिर जो है चक्की, उनकी औरत ने जो है आटा पीसा, तो वो हमारे साथ ही बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे कि हम सब कैसे सुधर जावे, कैसे हमारी जो है अल्लाह को हम भी पहचान कर जिंदगी गुजारने लगे। ऐसे हम वहाँ दावत किए थे, इनकी काफी फिक्रें थी, अभी भी हमारी उनसे राब्ता है। तो वो वहाँ ऐसा है कि जैसे अगर वहाँ हमारे इलाके की जो ज्यादा दूर नहीं है, 1-2 घंटे में आदमी वहाँ पहुँच जावे। 3 दिन की जमातें जाती रहे ताकि उनको याद ध्यानी हो। माशाल्लाह वहाँ साथी राजपीपला वाले तो जाते ही रहते, दूसरे गश्त करते हैं कभी कभी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बस्तियां हैं, गैर मानूस है, उसको हम समझते हैं कि जैसे उनके वहाँ उस जगह जाते हैं जमात की शक्ल में जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है उनके साथ में। वो इससे ही विरोध करते हैं कि भाई जमात वाले आए। जब हम 3-4 साथी मिलकर जाते हैं, उनकी खैरियत लेते हैं, तो बड़े खुश हो जाते हैं कि मतलब हमसे मिलने आए। ऐसे जमात की शक्ल नहीं होती है तो वो हमसे मानूस हो जाते हैं। बल्कि साथियों ने कहा भी था कि यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना। तो बहुत सारी जगह थी, तो हमने वहाँ गए और जाकर जो है उनसे उनके दिलों, अपने दिल को साफ करके गए कि हम, हमारे इनके बारे में कोई बदगुमानी नहीं। भले इन्होंने भगाया किसी को, इससे पहले भी जमाते गए थी तो वो भगा देते थे, तो हम वहाँ गए थे तो वो हम उनसे मिलते थे और वो जो है उन्हीं के पास जाते थे, जो जैसे मुतवल्ली हजरात थे सबसे पहले उन्हीं के घर पे जाते थे
यही भगाते हैं, जिनके पास ही जावे उनके घरों में बैठते थे, उनके घर वो बुलाते, हम वहाँ जावे तो वो हमें जो है घर के अंदर बुलावे, पानी आओ पानी पियो, तो वहाँ उनकी मस्कुराहट भी सुनती थी और वो हमारे साथ दिन भर रहते थे। और उनसे कहते थे कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का वास्ता लेकर आओ, हमारा ये काम है, हमारी जिंदगी चली गई, हमारे बच्चों का क्या होगा। वो काफी ज्यादा जो है फिक्रमंद रहते थे अपने बच्चों के बारे में कि जो हमारे बच्चे हैं इनकी जिंदगी कैसे सवर जावे, हमारी तो गुजर गई। बहुत सारे ऐसे साथी मिले कि वो अपने बच्चों के बारे में कहीं भरूच के अंदर पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं, कि उनको मदरस में जो भरूच के अंदर और ऐसे सूरत में ऐसे ऐसे इलाकों में वो अपने बच्चों को रूम लेकर यहाँ किराए पे यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं। हमारी तो जिंदगी गुजर गई, वो तो यूँ सोचते थे कि अब हमारे बच्चे सुधर जावे, हमारे बच्चे अल्लाह को पहचान कर जिंदगी गुजारने लगे। तो उनमें क्या है कि वहाँ जो बापू आते हैं तो उसकी वजह से सब महीने 2 महीने में जो है वहाँ प्रोग्राम होता है, उनकी तरफ हो गए, कभी कभी 6 महीने में साल में आते हैं। लेकिन हमारी जमातें जब जाना शुरू हो जाएगी, मान लो वहाँ नहीं कयाम करेगी, तो जैसे हमने कयाम किया था जहाँ बस्ती है जहाँ कयाम कर सकते हैं वहाँ नहीं जाना है, बल्कि वहाँ 3 साथी जाकर इस तरीके से उनसे मिलते रहे ताकि राब्ता रहे। राब्ता रहने से जो है वो हमारे साथ मानूस होते हैं। अभी जैसे हमने रफीक भाई के साथ में मिले, ये जो है एकदम गैर मानूस है, लेकिन अब इनको जो है धीरे धीरे मिलना जुलना हो रहा है। मिलते मिलते आज नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं 4-5 साल के बाद ये जो है हमारी तरफ जो है मुतवज्जो हो जाएगी। अभी हम सिसोदरा में गए थे, वहाँ के मुतवल्ली साहब से मुलाकात हुई, पूरा गांव पूरी बस्ती जो है उसी माहौल की है। माशाअल्लाह बहुत जगह ऐसे है कि उनकी मस्जिदें बड़ी है और उनकी अक्सरियत ज्यादा है वही है, लेकिन अब उनके साथ जब राब्ता हमारा हो गया है, मिले थे मस्जिद के उन्वान पे कि हमारे यहाँ जो है मस्जिद का काम है इस तरीके से, तो मिले, हम जो है उनके साथ में जाकर राब्ता रखेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद तो यही है वो लोग जो है आ जाएंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो ये चिल्ले के दौरान कितनी जगह कयाम हुआ आपका? हमारा जो है 5 जगह कयाम हुआ है, 30-32 छोटी छोटी जो है ऐसी आबादी अलग अलग बस्ती दी हुई थी, 5 जगह कयाम करके हमने जो है मेहनत की है। गैर मानूस बस्ती के अंदर 4 किताबें हो जाए अमल दी और वो भी चालू कराई, अच्छा, वो चालू है अभी हाल में अभी, और 10 भी चालू कराए। और मस्तूरात में कहीं कोई प्रोग्राम हुए? प्रोग्राम किए थे राजपाड़ी के अंदर, वहाँ 30 पहले बहुत टाइम से पहली बार हुआ। ये मस्तूरात में कोई नमाज वगैरह का कोई निज़ाम है? नमाज वगैरह पढ़ती है मस्तूरात? कुछ तफक्कुर किया था? अच्छा, और घरों में तालीम वगैरह का कोई निज़ाम? घरों में भी किताबें दी है, किताबें नहीं है? हमने किताबें उनके पैसे मंगाए और किताबें हमने अच्छी दी और अभी चालू भी है। अच्छा, हमने तपास भी करे भाई अमल चालू अल्लाह ताला के अंदर। अच्छा, चिल्ले के दौरान कितने साथियों की कुल मुलाकातें हुई हो? नहीं, बहुत ज्यादा मुलाकातें हुई। अच्छा, कुछ लोगों को कलमा सिखाया हो? वो जुआर पार्टी वगैरह जो यहाँ गए थे वहाँ पे कलमा नहीं आता, उनको कलमा पढ़ाए थे। बच्चे ऐसे अभी वो मदरसा बंद हो गया कहीं। यहाँ कितने साथी इस वक्त तक आए हैं? आप जहाँ जहाँ चिल्ला हमारे साथ नगर दूर आए थे, दूसरे आने वाले। अच्छा, आने वाले, इनसे ज्यादा राब्ता रखियो कि आ जाए। और आपकी जमात की 55 मेहनत करके जो अभी आए 55 साथी, यानी पहले तो कुछ आए हैं और आज 23 आएंगे, 24 आए माशाअल्लाह। ये सतरुद्दीन का बताया ना, सतरुद्दीन का, उनका भाई यहाँ राजपीपला में राजपाट में हमने उनकी मुलाकात की। हम पहले हमारा वक्त लगा था तो हमें पता था कि सतरुद्दीन ये मुसलमान है क्या, वो जो इनका नासिर भाई है उसकी मुलाकात करने गए थे। अच्छा, तो उन्हें बताया कि मैंने मुसलमान यहाँ कौन है, उनके चेहरे पे लगा मुसलमान है। फिर बोला मैं मेरा अब्बा मुसलमान है, उसने नाम बदल लिया है। फिर उनकी मुलाकात हमने करी, फिर उनको पूछा था, बोले इनका भाई भी राजपीपला में रहता है, तो वहाँ से इनके भाई के पास आए और उनको बताया। अभी भी उनकी मुलाकात करी, फिर उनको बताया कि भाई तुम उनको कुछ अरे ईमान में जो दाखिल सर्टिफिकेट बनाया उसमें कि भाई मैं वसाव बन गया। इसकी अम्मा मर गए जब भी वो नहीं गया, उसका भाई मर गया जब भी नहीं गया, उसकी बहन अभी मर गए हम थे जब भी उसके वहाँ नहीं गया। और इनका भाई लोग जाते हैं तो वो लोग को वसा लोग को ये करता है भाई इनको भगा दो, मुझे लेना है। अल्लाह ठीक है।
और चौथी जमात हमारी जमात विचरण करके गई थी और हमको 92 जोन दिया गया और हमारे 9 साथी आपके यहाँ क्यों कुल जोन के रूप कितने बने हुए थे पहले जो जोन के रूप बने हुए होते ये तो इस साल 4 जमातें गई थी वरना इससे पहले 5 जी अच्छा कुल 5 बने हुए जी इस साल 4 गई जी ऐसे रूट तो 8 है अच्छा यानी मतलब इसमें कुछ 8 है पर इस बार कम बने थे इस बार 4 ही जमात बनी 5 जमात थी लेकिन एक जमात नहीं बन पाई अच्छा जी एक हाईवे पथरी पे जो जोन की जमातें चलती थी वो जोन तो अभी कोरे के कोरे ही है 3 आबाद जोन है, 5 बंजर जोन, अच्छा 5 जो है बंजर यानी एक पटरी है और बाकी अतरफ। चलिए ठीक तो हमारे 9 साथी थे उसमें से 60 साथी 4 महीने वाले थे और 2 साथी चिल्ले वाले थे इसमें से कुछ साथी के पहले जोन में वक्त लगा हमारे 2-3 साथी इसमें से थे जिनमें पहले भी जोन के अंदर में वक्त लगा और हमको 45 बस्ती थी 40 और 2 इसमें से 13 मस्जिदों के अंदर में क़याम था और 29 बस्ती ऐसी थी जिसके अंदर में अतराफ के अंदर में काम कर सकते हैं गैर मतलब मस्जिदें नहीं थी वहाँ पर ऐसी 42 मस्जिदें बस्तियाँ थी टोटल हमने 13 मस्जिदों के अंदर में क़याम किया और 42 बस्तियों के अंदर में हमने काम किया करीबन हमारी 800 के करीब मुलाकातें हुई जी और मुलाकातों के अंदर में तो पहले हमने जो शुरुआत की वहाँ पर जहाँ से वहाँ पर आदिवासी में से पहले ये लोग हमारे बापजी बिरादरी बापजी बिरादरी के अंदर में से हम लोग कहा कि जो मुसलमान हुए थे लेकिन अभी भी वो लोग अपने आप को न्यू मुस्लिम कहते हैं तो हम लोगों ने पूछा कि भाई कितने सालों से आप मुसलमान क्योंकि हमारे परदादा लोग मुसलमान हुए थे मैंने बोला कि आप लोग जो है नए मुसलमान नहीं हो आप पुराने ही मुसलमान हो आप लोग अपने जहन में से बात निकाल दो कि हम नए मुसलमान हैं फिर हम लोगों ने उनको तरकीब दी कि आप लोग जो है ये आप लोग जो है इस आदिवासियों के साथ जो आपके जो रहना सहना है उनके जो है उनके प्रोग्रामों के अंदर में शरीक होना ये सब आप धीरे धीरे से आप लोग जरा छोड़ो और उनकी माशरत के अंदर में उनका जो उनका रहन सहन है उनका माशरा है उसके अंदर में से आप निकलोगे तो फिर आपके अंदर में से भी सब निकलेगा तो वो लोग उनके जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों के अंदर में भी शरीक होते हैं हम लोगों ने उनको तरकीब दी वो लोग हमको कहने लगे कि हमारी रिश्तेदारियाँ हैं ऐसा है वैसा है और उनके जो है लिबास भी अभी कुछ ऐसे है जी तो हमने उनको तरकीब दी उनको समझा कि भाई आप धीरे धीरे से जो है उनके प्रोग्रामों के अंदर में जाना ये करना सब जो है आप जरा थोड़ा छोड़ोगे तो आपके अंदर में से धीरे धीरे से बातें सब निकलेगी फिर हम लोगों ने उनके एक गांव है ये अपने 5 पिपड़ी करके गांव है उसके अंदर में हम लोग गए वहाँ पर छोटी सी मस्जिद है हम लोगों ने कहा कि हम यहाँ क़याम करें तो बोले अभी फिलहाल मस्जिद के करीब ही आदिवासी का प्रोग्राम है तो और उनके अंदर में हम सब शरीक रहते हैं तो आप लोग अभी क़याम मत करो तो हमने कहा कि ठीक है हम लोग आप ऐसा करते हैं आज की पूरा दिन हम लोग यहाँ अमल करते हैं तो बोले ठीक है आप ऐसा करो तो हम लोग वहाँ पर असर से लेकर इशा तक रहे जितने भी बालिग मर्द थे उन सबकी अक्सर मुलाकात हो गई उसमें एक बुजुर्ग थे उनको लकवा उनको पैरालिसिस हो गया था उनका पहले चिल्ला भी लगा था उससे मुलाकात हुई फिर दूसरी मरतबा हम लोग जिस दिन जाने वाले थे वहाँ पर और जमात आ गई उनके अतराफ के अंदर में एक और मुसलमान की उनके जो है रिश्तेदार वगैरह रहते थे थोड़े करीब खेतों में रहते थे तो उनकी भी सबकी हमारी मुलाकात अक्सर हो गई तो उनको भी हमने जोड़ने की फिक्र की वहाँ जमात आती जाती रहती जी जमातें आती जाती रहती जी फिर हम लोग आगे दूसरी बस्ती के अंदर में गए वहाँ से हम लोग तो मानुस बस्ती थी लेकिन उसके अतराफ के अंदर में जो गैर मानुस बस्ती आती जहाँ पर मस्जिदें नहीं थी उन जगह पर हम गए तो एक जगह पर हम गए तो वहाँ पर एक 65 साल के बुजुर्ग थे एक ही घर था मुसलमान का बाकी सब पूरे आदिवासी थे मुलाकात के लिए जी मुलाकात के लिए हम गए तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि आपके जो है बच्चे वगैरह बोले मेरा एक लड़का है वो अभी काम पर गया है तो मैंने बोला उसका नाम क्या बोले उसका नाम महेश है तो मैंने पूछा कि आप कहाँ के थे बोले मेरे वालिद साहब रांडेर के थे और रांडेर में जो मेन सर्कल बस स्टेशन है उसके बिल्कुल अपोजिट सामने में जो है हमारी प्रॉपर्टी थी बोले मैंने पूछा कि आपके वालिद साहब तो बोले मेरे वालिद साहब यहाँ पर तलाटी की जॉब थे गवर्नमेंट सर्वेंट थे फिर आदिवासी औरत के साथ उन्होंने निकाह किया था और फिर जो हम उनके औलाद है वो बता रहे थे कि हम 4 भाई बहन थे उसमें से 2 बहन जो है हमारी आदिवासी के साथ उनका शादी हो गई
और एक बहन मुसलमान है। तो मैंने पूछा कि चाचा आप कलमा पढ़ो, तो टूटा फूटा कलमा पढ़ सके। मैंने बहुत मुश्किल से उनको कलमा 7-8 मरतबा उनको कलमा पढ़ा है, वो कलमा पढ़ सके। मैंने पूछा कि फिर आपको कुछ सूरह फातिहा, अलहम्दुलिल्लाह की सूरत वगैरह आती है? बोले मुझे कुछ नहीं आता है। तो मैंने पूछा कि आप नमाज के लिए? तो बोले कभी कभी जो है सेलम्बा करीब पड़ता है तो वहाँ नमाज के लिए मैं चला जाता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि आपके वालिद साहब गुजर गए तो फिर आप रहने चले जाते? बोले मैं गया था तो मेरे चचा के लड़कों ने, मेरे चचा वगैरह ने जो है हमको धक्का मार के निकाल दिया कि आपका कुछ नहीं, यहाँ से आप चले जाओ। हालांकि हमारी सब प्रॉपर्टी वगैरह सब है वहाँ पे। तो फिर बोले बरसों हो गए, फिर हम नहीं गए। तो फिर मैंने पूछा कि आपका लड़का? तो बोले उनका नाम तो महेश है। बोले कब मिलेगा? बोले वो तो रात को जॉब पर जाता है, रात की ड्यूटी होती है, कभी दिन की ड्यूटी होती है तो नहीं मिल पाया। हमने थोड़ी देर इंतजार किया लेकिन वो नहीं मिल पाया। फिर हम लोग जो है एक जगह पर अतराफ के अंदर में गए, वहाँ पर शुगर फैक्ट्री है। उसका फोन नंबर वगैरह नहीं लिया? जी, महेश का फोन नहीं, उसके पास फोन नहीं था। उसकी लड़की भी थी, वो लड़की भी आदिवासी थी। फिर हम एक जगह पर हम गए, वहाँ पर जो है सागबारा करके एक जगह है, वहाँ पर ये अपने पालनपुर के इलाके के लोगों के होटल भी है, नेशनल होटल करके। सागबारा के अंदर में मस्जिद है लेकिन वहाँ पर कयाम नहीं है। तो फिर वो पहले जो है सागबारा जो नेशनल होटल है वहाँ पर कयाम करने देते थे जमात को, लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाई हम यहाँ ठहरे, तो बोले उन लोगों ने मना कर दिया। अभी बोले वो सागबारा के जो लोग हैं उन लोगों की तरफ से थोड़ा ये है हमारे पर, तो फिर बोले हम अभी कयाम करने का यहाँ इजाजत नहीं है। तो फिर हमने वहाँ कयाम नहीं किया, लेकिन हम लोग वहाँ मुलाकात के अंदर में गए, वहाँ हमने नमाज पढ़ी और फिर आगे हम जो है खानसरी है वहाँ पर, तो खानसरी पे गए तो 40 मुसलमान जो है यूपी के अतराफ की जो है वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, लेकिन वो बोले उसमें से आधे आए हैं, आधे अभी आए नहीं है। तो फिर उनकी मुलाकात हुई। फिर एक जगह पर अतराफ में एक मुसलमान का घर था, वहाँ पर हमारे मैं नहीं गया, मेरे साथी गए थे। वो जब गए तो वो एक घर था और एक ही चाचा थे। वो चाचा के लड़के बाहर रहते थे, चाचा अकेले वहाँ पर रहते थे। तो हमारे साथी को कहा कि जो है बहुत खुश हो गए और कहा कि जो है साल में सिर्फ एक मरतबा जौन की जमातें आती है, बाकी कोई मुसलमान हमें मिलने नहीं आता है। वो चाचा बहुत खुश हो गए। फिर एक और जगह पर हमारे साथी गए, ये मांडवी से कितना दूर पड़ता है? ये सेलम्बा से करीब पड़ता है। सेलम्बा से? जी, सेलम्बा से करीब पड़ता है। फिर मांडवी गए हमारी जमात, तो मांडवी के अतराफ के अंदर में एक जगह पर ईंट का भट्टा है, वहाँ पर 90 मुसलमान हैं, 90, वो सब यूपी के हैं। और उसके अंदर में फिर हम लोगों ने, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 90 लोग हैं, उनमें उनके मस्तूरात भी है। हम 2 मरतबा वहाँ पर गए, उनके साथ हम लोगों ने नमाजें भी पढ़ी वहाँ पर। और फिर हमने उनसे कहा कि जो आपके बच्चे हैं उनके पढ़ने का निज़ाम, तो बोले एक आलिमा है वो थोड़ा बहुत पढ़ी है, एक लड़की है, तो वो बोले ये बच्चों को पढ़ा दी है। फिर हमारे साथ मानवी के जिम्मेदार साथी भी थे, उन्हीं 90 लोगों में से कोई पढ़ी जी लिखी जी हुई? जी, उनकी बिरादरी में से ही है। तो मानवी के जिम्मेदार साथी भी थे मेरे साथ। तो फिर हमने उनका जो मेन आदमी था उससे यूँ कहा कि आप जो है ऐसा करो, ये आपके जो बच्चे हैं उनके उनके पढ़ाने के लिए हम जो है ये जिम्मेदार साथी थे हमारे साथ, कासिम भाई करके मानवी के। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इजाजत दो तो हम मानवी से रोजाना एक मौलाना को भेजे आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम करेंगे इंशाल्लाह। ये सबके साथ मिल करके हम मशवरा करेंगे। बोले अभी तो फिलहाल हमारे पास एक आलिमा है वो पढ़ा रही है। तो हमारे कासिम भाई ने कहा कि भाई अगर आप लोग इजाजत दो तो हम तय करके इंशाल्लाह ये मौलाना को वहाँ भेजे ताकि रोजाना आपके बच्चों को पढ़ावे। फिर उन लोगों का एक ऐसा टेंट जैसा बनाया था, वो खाली जगह पड़ी थी। हमने कहा कि ये 90 लोग हैं, आप ऐसा करो कि रोजाना यहाँ पर नमाज का भी इंतजाम करो। बोले उनकी शिफ्ट चलती है, ये ईंटों का भट्टा है, तो कुछ लोग दिन में काम करते हैं, कुछ लोग रात में काम करते हैं। मैंने बोला जिसको जब मौका मिल जावे, ये नमाज पढ़ने की अच्छी जगह है, आप लोग नमाज का भी, अगर मौलाना आवे तो मौलाना के साथ नमाज पढ़ लो। आप हजरात कितनी देर के लिए वहाँ गए थे? हम लोग गए थे, एक पहली मरतबा जब गए तो 3-4 घंटा रुके थे, फिर दूसरी मरतबा गए तो 2 घंटा रुके थे। और टेंट जब बना हुआ था तो कम से कम आप हजरात एक आध नमाज वहाँ पढ़ लेते? पढ़ी हमने नमाज जी, हमने असर की नमाज पढ़ी। तो आपके साथ कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी? जी, वहाँ के मकामी लोगों ने, तो कुछ लोगों ने नमाज, हमने बहुत उनको बुलाया कि भाई आओ नमाज पढ़ो। बोले हमारे कपड़े अच्छे नहीं है, अभी हम नहाएंगे धोएंगे। फिर एक जगह पर हम बेकड़ी पे गए, तो बेकड़ी के ऊपर 5 मुसलमान थे, वो बिजनौर के थे। तो हमने उनको दावत दी कि भाई चलो आप हमारे साथ। वो लोग कहे कि जो है आप हमारी दावत कबूल करो, तो उन्होंने हमारी दावत की, फिर हमने भी उनको दावत दी। तो 5 लोग की बात हमारे साथ शरीक भी रहे। कुछ लोगों ने हमारे साथ अतराफ के अंदर में जो एक डेडियापाड़ा के अतराफ के अंदर में हम गए, डेडियापाड़ा के अतराफ के अंदर में जो है अक्सर बस्तियां गैर मानुस बस्तियां हैं,
मकामी देजियापाड़ा के जिम्मेदार साथी भी थे हमारे साथ। हम लोगों ने अतराफ के अंदर में काम किया, गैर मानुस लोग थे। हम लोग उनके पीछे पीछे जाते थे, लेकिन वो लोग भागते थे। बोले, हमने कहा कि भाई हमारी थोड़ी बात सुन लो, हम आपके पास कुछ नहीं चाहते, हम थोड़ा आपको, बोले हम नहीं सुनते। कुछ लोगों ने बात सुनी, कुछ लोगों ने बात नहीं सुनी हमारी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्या सर लेकर के आए आपकी जमात? हमारे कुछ साथी ने इरादा किया कि भाई इंशाल्लाह फिर वापस आइंदा साल भी जॉन के अंदर में अगर मशवरा हो जाएगा तो जॉन में जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक साल, इस साल से लेकर उस साल तक तो ये वक्फा बहुत लंबा हो जाएगा, बीच में क्या करेंगे? बीच में भी इंशाल्लाह मुलाकातें करेंगे उनका। 3 दिन की जमातों का भी इरादा किया है कि 3 दिन की जमात में इंशाल्लाह अगर हमारे जिम्मेदारों से मशवरे से तय हो जाए तो इंशाल्लाह 3 दिन की जमात भी डालेंगे हम, क्योंकि हमारे यहाँ से करीब पड़ता है जी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पांडोले हल्के के अंदर मांगने वाले जो है रोड पर जो है, उनमें पहले गुजशता जोन की जमात में काम किया था। ये जो मांगने वाले हैं मौलाना वो, हाँ जी, उनमें 2 साल पहले जो जमातें चली थी जी, तो वो मेहनत जारी है या फिर क्या है? मेन रोड पर जो पट्टी है उसमें काम शुरू किया था आप लोगों जी, ने। जी, जी, तो काम शुरू है, मौलाना वो जो है हाँ, वो, चालू है, जी, चालू है। और नमाज वगैरह जो शुरू की थी। और हर हल्के वाले को भी ये गैर मानस बस्तियां दी गई है। जैसे ये भाई ने बताया कि करसार देसार, तो ये करसार और देसार जो है हमारे हल्के में पड़ता है, ये 2 बंजर बस्ती। ऐसे हर हल्के वालों को बंजर बस्तियां दी गई है और उनका हर महीने मसले में बात भी आती है। तशरीफ रखे इंशाल्लाह भी आगे की नहीं। ठीक है, तशरीफ। और दोस्तों ये अहवाल उम्मत के हमारे सामने आए। अब जरूरत तो ये है, तकाजा तो ये है कि हम अपने तमाम हाजतों को, अपनी तमाम ख्वाहिशात को छोड़कर इस मकसद की तकमील के लिए अपने आप को इस्तेमाल फरमाएं। ऐसे ऐसे हालात हमारे सामने आए हों, ऐसे ऐसी बस्तियों में मुसलमान बसते हो, यानी मुसलमान बिखरा हुआ है, पूरे इलाके में मुसलमान बिखरा हुआ है और गोया खोया हुआ है। जोन की जमातों के जरिए से खोए हुए मुसलमान को हासिल करना और बिखरे हुए मुसलमान को जमा करना, उसको उसकी दीन की समझ लेना, ये हमारी जिम्मेदारी। हालात हमारे सामने आए और फिर उसके बाद अगर हम इन हालात से आंख बंद करके अपने अपने कारोबार में, अपने अपने मस्तियों में मस्त रहें, तो ये हमारे लिए किसी हाल में सेफ नहीं देता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर इस मेहनत को, मेहनत के मिजाज को और मेहनत के लिए कुर्बानी को पहले दिन से सीखा था और अमली तौर पर किया था, जिसके नतीजे में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से जाने तक में अल्लाह ताला ने दीन की तकमील फरमा दी और कुरान करीम में मस्ता सुनाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने दीन मुकम्मल कर लिया। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात का वक्त आया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफात के होते ही कुछ हालात ने पलटा खाया और ऐसा हुआ कि मदीने पर एक तरफ तो चढ़ाई करने के लिए हिरकल एक लश्कर लेकर निकला हुआ है और कुछ लोगों ने मदीने में रहकर इज्तिमाई तौर पर ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ लोग जो नए नए मुसलमान हुए थे, जिनके जहनों में ये बात थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है इसलिए अल्लाह की मदद आती है, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी और अल्लाह की मदद नहीं आएगी तो हम दुनिया में कैसे जी सकेंगे। इसलिए उन लोगों ने इर्तिदाद कर लिया और मुर्तद हो गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन के अंदर में इस कमी को देखा तो वो तारीखी जुमला फरमाया अयुन कसुद्दीन व अना हय्युन, क्या दीन में कमी आ जाए और मैं जिंदा रहूं। मुसलमान इस हालत के अंदर में हो कि एक मुसलमान गैर के साथ शादी कर रहा है, मुसलमान बाप मुसलमान है, औलाद कुछ और है और घरों के अंदर में पता नहीं क्या क्या बलाए बलाए घर रखी हुई है और मुसलमान बूढ़ा मुसलमान भी कलमे तक से नावाकिफ है। ऐसे हालात हमारे सामने आए, फिर हम रात में सुकून के साथ कैसे सो सके। ये मेहनत तो अंदर की फिक्र को चाहता है, अंदर की फिक्र। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फिक्र अल्लाह ताला की तरफ से मिला था, दाइमल फिक्रा मुतवासिल अल अहसान,
ہمیشہ فکر مند، ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور یہ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ پیارے نبی جی، آپ اس بات پر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ کیوں ایماندار نہیں بن جاتے۔ ہمارے اندر میں بھی یہ فکر منتقل ہو۔ اللہ تعالیٰ فکروں پر ذہنوں میں بات کھولیں گے، تدبیر سجائیں گے، کیسے کرنا یہ اللہ سجائیں گے، لیکن اپنے اندر میں فکر کی تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ ان حالات کو سن کر ہمارے اندر میں فکر پیدا ہو جائے۔ کچھ وہ حضرات ہیں جنہوں نے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ ان میں سے کچھ حضرات ہیں جنہوں نے حالات کو، دوسرے کے دیکھے ہوئے حالات کو سنا ہے۔ جن حضرات نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا تو دل بے چین ہو جانا چاہیے۔ ایک آدمی ہائی وے کے اوپر سے سفر کرتے ہوئے آ رہا ہے، اس نے آ کر ہمیں خبر دی کہ بھئی میں نے دیکھا کہ 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی اور اس کے اندر میں 4-5 لوگ مر گئے، کسی کی گردن ٹوٹ گئی، کسی کے ہاتھ ٹوٹ گئے، کسی کا بیجا پڑ گیا، اور یہ سارا منظر اس نے دیکھا۔ یہاں آ کر ہمارے سامنے بیان کیا۔ تھوڑی دیر تو ہماری منہ میں بھی انگلی چلی گئی، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیا ہو گیا، ارے رے، دل میں یہ بات آئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب چائے ناشتے کے لیے گئے تو چائے بھی پی رہے ہیں، ناشتہ بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ جس نے دیکھا ہے اس کے سامنے دسترخوان بچھایا تو اس کا ہاتھ لمبا نہیں ہو رہا۔ بھئی کیا بات ہے، کیوں کھاتے نہیں ہو؟ کہ یار مجھے تو کچھ اچھا نہیں لگتا، مجھے تو وہ منظر یاد آتا ہے، میں نے وہ دیکھا، میں کھانا لقمہ اٹھاتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا، دسترخوان اٹھا۔ یہ دنیا کے ان مناظر کو دیکھ کر آدمی کا اندر کا فکر بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم آخرت کے اعتبار سے ہمارے اندر میں یہ فکر پیدا ہو جائے، ہم یہ طے کرنے والے بنے کہ میری جان میرا مال ایسی بستی میں ایسے مسلمان پر لگے کہ جس کے ذریعے سے اس مسلمان کا دین محفوظ ہو جائے۔ میں اپنی دنیا کے کام کاج کے ساتھ ساتھ اس محنت کو مقدم رکھنے والا بنوں، اور جیسے بے اولاد آدمی کسی کی اولاد کو لے پالک لیتا ہے، دتک لیتا ہے، اور اس بچے کو پرورش میں وہ ذریعہ بنتا ہے، بڑا بن کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ایسے ہی ہمارا یہ مجمع جو ہے، یہ مجمع دتک کے طور پر، لے پالک کے طور پر کوئی بستی لے لے، یہ بستی مجھے دے دو، اور انشاءاللہ میں اس بستی میں خود بھی کوشش کروں گا اور اپنی مسجدوار جماعت کے ساتھیوں کو لے کر کے جاؤں گا، اور وہاں ایسی محنت کروں گا کہ انشاءاللہ مہینہ 2 مہینہ ہوتے ہوتے وہاں اذان نماز زندہ ہو جائے، اور انشاءاللہ سال ہوتے ہوتے ایسی محنت کرنے والا بنوں گا کہ وہاں 100% مسلمان مرد مسجد میں آ کر یا عبادت گاہ میں آ کر نماز ادا کرنے والے بنے، اور 100% مستورات کے اندر میں بھی کلمہ نماز زندہ ہو جائے اور شریعت اور سنت زندہ ہو جائے۔ اگر ہمارے اندر میں یہ جذبات ہیں تو پھر اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ المعونۃ تأتی علی قدر المعونہ، علماء سے سنا ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ ذمہ داری کے بقدر آتی ہے۔ بندہ جتنا بوجھ اپنے ذمے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے دین کی ذمہ داری کا بوجھ اپنے اوپر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں کھولیں گے۔ اس لیے اب تو وہ دور گزر گیا جب ہماری 3 دن کی جماعتیں وہاں جاتی تھی، محنت کرتی تھی، اس میں ایک عرصہ ہمارا گزر گیا۔ اب تو ہم میں سے ہر ایک یہ طے کر لے کہ میں انشاءاللہ فلاں بستی کو اپنے ذمے لیتا ہوں، اور میں خود اور میں اپنی مسجدوار جماعت میں اپنے 2-4 ساتھی کو لے کر اس بستی پر ایسی محنت کروں گا کہ جس کے نتیجے میں پوری بستی کے اندر میں دین و ایمان کی شکلیں زندہ ہو جائے۔ اس لیے ہمارا یہ مجمع یہ طے کر لے اور اپنی خوشی سے بغیر کسی کے زور کیے ہوئے ہم خود اپنی خوشی سے اپنے ذمے ایک بستی لے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرے، اللہ سے تدبیر مانگے۔ بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تدبیر تم اپنی دنیا کے لیے اختیار کرتے ہو ویسے ہی تدبیر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تدبیر کے اندر میں اثر ڈالے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے، جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ میں اپنے ذمے ایک بستی لینے کو تیار ہوں۔ تیار ہے سب؟ انشاءاللہ۔ کون کون بستی لینے کے لیے تیار ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ میں ایک بستی اپنے ذمے لوں گا اور محنت کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے بس کی کوشش ہمیں کرنی ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، نبیوں کے ہاتھ میں، نبیوں کے ذمے تو ہدایت کی محنت ہے، ہم ہدایت کی محنت کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ بولو اور بتاؤ اور بتاؤ۔
یہ تو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے فرمایا تھا تیرے ذریعے سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر. بولو اور بتاؤ اور کھڑے ہو جاؤ. سفر کے اندر ایک آدمی نے جو 25 بستیاں لی, کسی نے 15 لی, کسی نے 10 لی. ایک فرد نے کہ میں 10 بستی یا 5 بستی یا 1 بستی, تو اس بستی کو جو میں ٹارگیٹ بنا کر اس کو جو ہے محنت کریں گے وہاں ایسے ساتھی کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ہر جگہ پر ہر ضلع میں اس طریقے سے زون کی جماعت کی کارگزاریاں ہوئی اور اس کے بعد ایک جوان نے ایک آدمی نے 10 بستیاں اپنے ذمے لی کہ انشاءاللہ ان 10 بستیوں میں محنت کروں گا. بولو اللہ ہی مدد کرے گا انشاءاللہ. ذمہ داری لیں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا, اللہ راہیں کھولے گا اور انشاءاللہ آپ کو ذریعہ بنائے گا اللہ تعالی. ایک عالم حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بدن کے اعتبار سے بہت کمزور, یوں سنا آپ کے بدن کا کل وزن 30 کلو تھا, زبان میں بھی لکنت تھی, لیکن ایک فکر کو لے کر ذمہ داری کو لے کر اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکت سے پورے عالم کو حرکت میں کھڑا کر دیا. ہم اور آپ تھوڑا سا محنت کریں. ہمارا اپنا اطراف ہے, دور نہیں, ہمارا اپنا اطراف ہے. دوسرے گشت کے ذریعے سے 3 دن کے ذریعے سے 2.5 گھنٹے کی ملاقاتوں کے ذریعے سے ہم وہاں جا سکتے ہیں. لوگوں کو مانوس کرنا, قریب کرنا, عید بقرعید کے موقع پر ان کو مانوس کرنا, ان کے پاس کچھ لینا, ان کے پاس آنا جانا. دیہاتوں میں رہنے والے ہمارے یہاں شہروں میں آتے ہیں, اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی ہاسپٹلوں میں جا کر ان کی مدد کرنا, اعانت کرنا, ان کی تعزیت یعنی عیادت کرنا. ان چیزوں کے ذریعے سے انشاءاللہ قریب ہوں گے اور آہستہ آہستہ کام کی شکلیں اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اور کھڑے ہو جاؤ اور کچھ ہمت کر لے احباب. بستیاں ہماری زیادہ ہیں. سال میں ایک دفعہ آتے ہیں, ابھی سنا آپ نے, ہر جگہ آپ نہیں سنتے ہیں, بیچارے کہتے ہیں کہ تم سال میں ایک دفعہ آتے ہو. اگر ہم اس طرح بستی اگر لے لیں گے تو انشاءاللہ مسلسل ان کے ساتھ میں ملاقات ہوگی تو کچھ کام ہوگا. آپ لوگوں نے بھی سنا, اس لیے آپ ذرا جو ارادے کریں تو انشاءاللہ کوئی ایک بستی جو ہے میں اس کو ٹارگیٹ بنا کر اسی کو محنت کروں. جی اور ارادہ کر لیں. آپ حضرات ایک طرف بیٹھ کر اپنے ذمے اپنا نام لکھیں اور اپنے ذمے کتنی بستیاں ہیں وہ لے رہے ہیں وہ بستیاں بھی لکھیں. ذرا ایک طرف بیٹھ کر کے پرچے میں لکھ لیں. اچھا آپ حضرات تھوڑا سا قریب آ جاؤ. آپ حضرات قریب آ جاؤ. آپ حضرات کیا کریں گے جی؟ اگر خود اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتے تو کم از کم کرنے والوں کا تعاون کریں. یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم کرنے والے جو ساتھی ہیں ان کا تعاون کریں گے اور ہمارے ساتھی کی ہمت بڑھائیں گے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا, اپنے ذمے 2 بستیاں لے لی. انشاءاللہ میں بھی آپ کا تعاون کروں گا. اس طریقے سے اپنے ساتھیوں کے مددگار بن جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی مدد کرنے والوں کے لیے دعائیں دی ہے اور فرمایا ہے اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. اے اللہ دین کے مددگاروں کی مغفرت فرما اور ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما اور ان کے پوتوں کی مغفرت فرما. تو ہم اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے بنے یا اللہ کے دین کی نصرت کرنے والوں کی مدد کرنے والے بنے تو انشاءاللہ ہمارا بھی اس میں شمار ہو جائے گا. اس کے لیے تو آپ حضرات تیار ہیں؟ اچھا کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ. واہ 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 واہ. ارے اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنے جو ہمارے جو ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تعاون کے لیے انشاءاللہ ہم بھی ان کا تعاون کریں گے انشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ حضرات بھی ذرا ان کے پاس بیٹھ کر ترتیب بنا لیں. آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, آ جاؤ آ جاؤ ترتیب بنا لیں ان کے پاس بیٹھ کر. ماشاءاللہ اپنے ذمے جو بستیاں لے رہے ہیں ان کے اندر میں اپنا نام بھی لکھ لے. ذرا ہماری اپنی مسجد کا اپنے حلقے کا نام بھی لکھ لے تاکہ ہمارے ذمہ داروں کے پاس یہ چیز محفوظ رہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک ساتھی ہے تو آپ ان کا تعاون نہیں کریں گے کیا؟ تو کرو, جاؤ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ.
अगर आप ताउन करना चाहते हैं तो माशाल्लाह अच्छा है, बहुत अच्छा है। जेब में डाल दो। जरा अच्छी तरह पर्चियां बनाना, ये सारी पर्चियां महफूज होगी इंशाल्लाह हमारे जिम्मेदारों के पास, और उसका पूरा एक पर्चा बनेगा और ये पर्चा बनकर हमारे बड़ों के पास जाएगा इंशाल्लाह। और कौन सी बस्तियां हैं वो जरा बस्तियों के नाम भी लिख ले, और इसके अलावा हमारे जो साथी ने जिम्मेदारी ली है